this lecture is not about uh, NCRT's lecture. It is about post-independence history. Now, some people will find it new, especially people who have started, you know, the classes recently. But I will try to take it in such a manner that you'll have a good understanding. Now, the objective of the lecture is to discuss broadly what happened in the Indian economy after 1991. तो 1991 में हमारी इकोनॉमी में 1991 के बाद what exactly happened in India's economy? That is the first thing. The second thing, which what were other important events which happened during this period? और भी क्या क्या important events थे जो इंडिया में हुए थे? That will be the other focus of the discussion. Now, we all know that almost 30 years have passed, and after passing of 30 years, we can say that a lot of things have happened in India's economy, and we need to understand what were the other events. For example, not only the economic went through a lot of changes. हमारी इकोनॉमी 91 से पहले एक अलग तरह का सिस्टम था. It changed in 1991 and we brought a new kind of system. वो सिस्टम क्या है, we'll discuss. Then in this period, see, it was not only about economy. When you're changing the economy, the entire way in which people look at business, people do jobs, everything changes. Today, India is a better placed country in comparison to what it was there in 70s or 80s or 90s. आज हमारी economy relatively strong है. We have a reserve of maybe $400 billion. We are relatively much better placed in areas of technological development, areas of IT sector. India is the back office of the world. So India is now realized as a country जहाँ पर human resources is something that will create future possibilities. Our human capital, जो हमारा demographic dividend है, the young population like people like you will change the face of the country in the coming years. Now, but at the same time, there was some important so I'll discuss about who were the prime minister. So the first जो period था prime minister जो 90s में थे, it was PV Narasimha Rao. उसके बाद there was some unstable government in the interim period, but eventually uh, almost 6 years was ruled by NDA government, which was Atal Bihari Vajpayee. His leadership was something which set a new kind of approach, जहाँ एक consensus में इतनी एक stable government का एक approach आया, and that system is even continuing even today. And in that period, India underwent and India pushed the world, and we brought new things. For example, हमने पोखरान में nuclear security के point of view से हमने we tested our nuclear capabilities. India became a nuclear state. It was not an easy thing, especially जब मैं discuss करूँगा इसके बारे में. Then at the same time, after that, just after a year, 1999 में probably आप लोग शायद तब तक आप पैदा भी नहीं हुए होंगे, most of you. India faced a crisis of Kargil War, Operation Vijay. It was a war which was kind of thrust on us. It was a difficult situation, especially क्योंकि just एक साल पहले हमने जो न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट करके अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज जो वर्ल्ड को बताया था, तो उसमें एक प्रॉब्लम ये हुई दैट द एंटायर वर्ल्ड काइंड ऑफ वेंट अगेंस्ट अस बिकॉज nobody wanted कि we should test our nuclear capabilities. So automatically Kargil war was another watershed moment, especially the way we handled the entire problems. Then उसके बाद जो 21st century आया, and 21st century is India's century. Remember, ये जो 21st century is a century of India. It is a century of Asian nation. It is a century where the countries we like China and India will make the mark. China is already progressing, already is at the forefront. But China is not a democracy. China does not have a strength. China does not have, you can say, the resilience of Indian population. China does not have freedom, fundamental rights. India में तो आप इतने free हो, आप कुछ भी कह सकते हो. You can question the government, you can question the system, you can innovate. Of course, there are problems. You have your own share of problems. You have a problem with the system. You have a problem with the law and order. You have a problem with the way business is done in the country. A number of things are there, but we are still better placed country in comparison to if you compare with China and other nations. So it is important to understand that उसके बाद क्या हुआ. We brought major reforms. For example, during the Manmohan Singh era came. Manmohan Singh ruled the country for almost 10 years. So a lot of reforms happened in the economy and in the society as well. New laws were brought in.
उसके बाद आया आपका द फेज ऑफ नरेंद्र मोदी. नरेंद्र मोदी ब्रॉट मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जैसे डिमोनेटाइजेशन आया था. उसके बाद जीएसटी केम इन. So India has underwent and have seen lot of things. The focus will be naturally economy, because economic forefront पे हमने बहुत कुछ changes किए, बहुत कुछ देखा. But of course, uh, not only here, the focus, economic focus society पे पड़ा. The focus, impacted our the way we are living, the way we are doing business. Today we are sitting in the class and we are discussing about online classes. We are discussing the topic from past एक महीने से हम लोग classes कर रहे हैं regularly, by different faculties taking different areas. And I would attribute the way globalization has happened in India. Today India has a job जो market है that is coming from the private sector, and there is a huge opportunity. There are challenges as well, but there is a huge opportunity. So let's discuss all of that and let's try to understand. uh, बहुत सारी चीजें शायद आपको समझ में ना भी आए. इट इज कम्प्लीटली ओके, बिकॉज कुछ इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स होंगे. सो इफ यू वांट नॉट अंडरस्टैंड, इट इज कम्प्लीटली ओके, बिकॉज इन द नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी नेक्स्ट वीक में, उसमें ग्लोबलाइजेशन एक टॉपिक अलग से है. सो देयर आई कैन टेक इट थिंग्स इन डिटेल. But at a macro level, we'll try to understand कि क्या क्या हुआ, and let's get into the understanding of कि हमने इन सारे problems को कैसे handle किया. Now, so अगर हम define करते हैं economy को, so we can define economy into two broad areas. One is the pre-reform period. 91 से पहले हम पूरी economy को दो phase में divide कर सकते हैं. One was pre-reform and other was post-reform. और ये 1991 में reforms हुए. जो रिफॉर्म्स हुए उसको हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं. लेट्स ट्राई अंडरस्टैंड हुआ क्या था. सो कुछ इस तरह से था. सो वी कैन डिवाइड इंडियाज इकोनॉमी लाइक दिस. सो द फर्स्ट फेज इज फ्रॉम 1951 टू 1991. अगर मैं इकोनॉमी को ऐसे डिवाइड कर देता हूं दो ब्रॉड एरियाज में, सो दिस वाज अ फेज वेयर इंडियन इकोनॉमी वाज अ क्लोज्ड इकोनॉमी. हमारी इकोनॉमी क्लोज थी एंड गवर्नमेंट हैड अ प्राइमरी रोल. फर्स्ट, व्हाट एग्जैक्टली इकोनॉमी में होता क्या? इकोनॉमिक्स इकोनॉमी में मेनली वी प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. हम लोग जो भी आपके अराउंड जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, आप देखो उसमें गवर्नमेंट का रोल कितना है. यू विल फाइंड दैट गवर्नमेंट हैज रोल बट इन फ्यू एरियाज. नाउ हियर गवर्नमेंट हैड अ प्राइमरी रोल, मींस इन द प्रोडक्शन, इन द प्राइस कितना होगा, क्वालिटी कंट्रोल, एवरीथिंग वाज अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल. क्वालिटी तो आज भी गवर्नमेंट के अंडर में है, बट प्राइवेट पीपल हैव लॉट ऑफ फ्रीडम. पब्लिक वाज देयर, सॉरी, प्राइवेट वाज देयर, बट प्राइवेट हैड लिमिटेड रोल. यहाँ पे लिमिटेड रोल था. लिमिटेड मींस प्राइवेट सिर्फ मे बी फूड आइटम्स बनाएगा, होजरी या फिर कंज्यूमर गुड्स जो हम डे टू डे यूजेस में, जो डे टू डे आइटम हम यूज करते हैं. बट जो बड़ी इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, बिग, शॉर्ट, द हेवी इंडस्ट्रीज, एवरीथिंग विल बी कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. तो इस तरह से हमारा जो इकोनॉमी था, इस पूरा इकोनॉमी का आउटकम क्या था? दैट इंडिया फेस्ड अ ग्रोथ रेट ऑफ एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ 4%. यानी हमारी जो एवरेज इनकम ग्रोथ थी हर साल, दैट वाज 4%. द एवरेज इंक्रीज इन द इकोनॉमिक आउटपुट. Now, because why economic growth is important? क्योंकि जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, the wealth of the country increases, and when the wealth will increase, average income will increase, and that is how the prosperity या फिर आप कह लीजिए empowerment of the masses will happen. You अभी आज इकोनॉमी लॉकडाउन है, इकोनॉमी इज ऑलमोस्ट ऑन स्टैंड स्टिल मोड, स्पेशली मेजोरिटी सेक्टर. तो आज हम लोग क्या फेस कर रहे हैं? पीपल आर गेटिंग जॉबलेस, पीपल आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. सो यू कांट स्टॉप द इकोनॉमी, बट ये एक अलग क्राइसिस है, एंड हेंस वी हैव टेकन दिस वेरी एक्सट्रीम मेजर. इस वक्त क्या था? गवर्नमेंट हैड द प्राइमरी रोल, प्राइवेट हैड लिमिटेड रोल, एंड ग्रोथ जो रेट था हमारा बहुत लिमिटेड था. वी वर एक्सपेक्टिंग, हमारा जो ग्रोथ टारगेट था वो ज्यादा था, बट वी नेवर वर एबल टू अचीव द ग्रोथ टारगेट. सो ये जो फेज था 1951 से लेकर 1991 तक, इंडिया वाज अ क्लोज्ड इकोनॉमी. इट हैड इट्स ओन शेयर ऑफ बेनिफिट्स. ऐसा नहीं कि इकोनॉमी में सब कुछ खराब था, बट द पोटेंशियल ऑफ इंडियाज इकोनॉमी वाज समथिंग दैट वी कुड नॉट रियलाइज. हमारी जो पोटेंशियल थी, हमारा जो कैपेसिटी था, उस लेवल पर हम नहीं जा पाए. बिकॉज whenever you do something, you have made comparison, और कंपैरिजन अगर हम कंपेयर करते हैं, so many other countries which got independence around the same time, for example Pakistan, even Pakistan was doing better economic front पे अगर हम बात करते हैं in the first few decades. Similarly, when we compare India with Singapore, Taiwan, South Korea, Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines, ये कुछ इकोनॉमीज थी, they were growing at an average rate of 8%, 9%, 10%. यानी उनकी ग्रोथ रेट हमसे डबल ही नहीं थी,
many of the countries became developed in maybe in decades. बट इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ा और बहुत सारे कंसर्न्स आए, एंड इंडिया हैड इट्स ओन शेयर ऑफ प्रॉब्लम्स एज वेल. फॉर एग्जांपल हमने हमने 3 वॉर लड़े इस पीरियड में. वी हैड डिपेंडेंसी, इंडिया वाज अ ह्यूज कंट्री, so we had our own share of problems. 1991 में क्या हुआ, यहाँ पर ग्रोथ रेट प्लमेटेड और ग्रोथ रेट अराउंड 4% था, बट 1980s के पीरियड में कुछ मेजर चेंजेस हुए. Now remember, this was the time when India chose economic system. इस पूरे इकोनॉमिक सिस्टम में जहाँ गवर्नमेंट प्राइमरी रोल प्ले करती है, उसको हम लोग सोशलिस्ट सिस्टम कहते हैं. Okay, so it was a socialist system, and this was also a period where world was divided ideologically into two power blocks. दो power blocks में world divided था. One was socialist and another was capitalist. Socialist या communist को USSR lead करता था, and of course USA was the other power block. Now India was heavily impressed by USSR because we felt कि if you want to develop a country or society, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए जहां गवर्नमेंट शुड प्ले अ रोल, बिकॉज इफ प्राइवेट विल प्ले अ रोल, प्राइवेट विल काइंड ऑफ इंक्रीज इनइक्वालिटी इन सोसाइटी. अगर प्राइवेट कंट्रोल करेगा तो प्राइवेट में जो ओनर्स हैं उनको फायदा मिलेगा, मेजॉरिटी मासेस विल नॉट गेट बेनिफिट. एंड वी हैव टू क्रिएट अ सिस्टम वेयर प्राइवेट सिस्टम should not flourish like what has happened in the countries like USA or West European nations. तो एक जनरल एक्सेप्टेड व्यू ये था कि हमें एक समाजवाद या समाजवादी अर्थव्यवस्था लेके आनी है, under which people will get the benefit. Government will provide job, government will ensure prosperity, government will ensure happiness in the economy, government will ensure that people have whatever they need. यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल रहेगा. तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हमने देखा इस पीरियड में. बट रिमेंबर, these objective had its own share of problems. इन ऑब्जेक्टिव्स में कुछ बड़े बड़े प्रॉब्लम्स भी थे. सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था कि गवर्नमेंट कुड नॉट मीट द डिमांड्स ऑफ द इकोनॉमी. गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल था, ब्लैक मार्केटिंग होने लगी, प्राइवेट वाज प्राइवेट को आप ग्रो करने नहीं दे रहे थे, एंड पब्लिक वाज नॉट डूइंग, पब्लिक अच्छा नहीं कर रहा था गवर्नमेंट लेड. एंड दैट इज वेयर बाय लेट 80s आते आते इंडिया फेस सम बिग प्रॉब्लम. पहला प्रॉब्लम था, वी वर स्टार्टेड फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस. ये क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस मींस कि कंट्री डज नॉट हैव डॉलर्स टू पे फॉर देयर इंपोर्ट्स. अगर हमारे जो इंपोर्ट्स होते हैं उसके लिए डॉलर की अर्निंग एक्सपोर्ट से होती है, सो यू डोंट हैव डॉलर्स टू पे द इंपोर्ट, व्हिच मींस क्या एक इंडिया ऐसी कंट्री अपने आप को इंडिपेंडेंट रख सकती है? शायद नहीं. हमारी एनर्जी बाहर से, एनर्जी, ऑयल, गैस से सब बाहर से आता है. सो डॉलर का आना, द अर्निंग ऑफ डॉलर इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट वी कैन पे द इंपोर्ट बिल्स. तो इस टाइम ये प्रॉब्लम आया कि द ऑयल क्राइसिस, सॉरी द बीओपी क्राइसिस हैपेंड, जहां पे हमारा डॉलर का जो पूरा फॉरेक्स था वो कम हो गया. द सेकंड वाज इंडिया वाज आल्सो फेसिंग हाई डेट प्रॉब्लम. कंट्री का जो कर्ज था, डेट था, जो एक्सटर्नल डेट था, दैट आल्सो इंक्रीज, एंड दैट इंक्रीज टू अ वेरी हाई लेवल. यानी व्हाई? बिकॉज आपको जब रिसोर्स की जरूरत होती है, आपको नहीं होता, तो आप बोरो करते हो फ्रॉम एक्सटर्नल पीपल, फ्रॉम आईएमएफ, फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, फ्रॉम फॉरेन नेशंस. तो जब बोरो करते हो तो डेट इंक्रीज. तीसरा जो प्रॉब्लम देखने को मिला, दैट वाज रिलेटेड टू इन्फ्लेशन. महंगाई इकोनॉमी में बहुत तेजी से बढ़ गई. सो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई कि दीज थिंग्स सडनली वेंट आउट ऑफ कंट्रोल. ये स्पाइरल होके बहुत एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए. एट द सेम टाइम गवर्नमेंट लेड जो भी सेक्टर्स थे, देवर, इट वाज एक्सेप्टेड, एक एक्सेप्टेड व्यू आया कि गवर्नमेंट लेड सेक्टर्स आर हाईली इनएफिशिएंट एंड दे कैन नॉट कॉम्पीट विद प्राइवेट प्लेयर्स, और हम इकोनॉमी को क्लोज अब रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, विच मींस वी विल हैव टू अलाउ प्राइवेट सेक्टर एंड कंपटीशन. एट द सेम टाइम यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अब एक आइडियोलॉजिकल बेस था, एक जो है एक आइडियोलॉजिकल बेस था कि भाई ये इकोनॉमिक सिस्टम कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट का लीडर कौन था? यूएसएसआर था. नाउ दैट लीडर हिमसेल्फ गॉट डाउन, एक्सेप्ट चाइना. तो जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड रीजंस इन 1980s, तो यूएसएसआर ने भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अडॉप्ट कर लिया. कैन यू इमेजिन यूएसएसआर अडॉप्टिंग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? तो जब यूएसएसआर का डिक्लाइन हुआ, तो देयर वाज नो रीजन, बिकॉज ये जो इकोनॉमिक सिस्टम था, इट वाज अशर्ड बाय नेहरू, इंदिरा, and hence to change and adopt a new economic system by the Congress leadership was very difficult. But they had their own reasons, and they found कि जो हमारा ideological लीडर भी है जिसने पूरे इकोनॉमिक को सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को was leading in the world, that itself is not there. And that is where इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. तो यहाँ पर हमने क्या किया? वी वेंट फॉर सम मेजर. तो पहले तो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ इसकी वजह से, ठीक है. इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, देन गवर्नमेंट वर वाज रियलाइज्ड, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भाई अगर आपको इकोनॉमी को चलाना है तो यू हैव टू चेंज थिंग्स द वे दे वर्किंग.
यू हैव टू चेंज द अप्रोच। आपको अपनी इकोनॉमी को ओपन करना होगा। यू हैव टू इंश्योर कि गवर्नमेंट का रोल कम हो जाए, गवर्नमेंट रोल शुड बी रेलिगेटेड। मैं इकोनॉमी में बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट का रोल डेवलपमेंट में, गवर्नमेंट का रोल वेलफेयर में, वो वहीं रहेगा। इंडिया इज स्टिल अ सोशलिस्ट इकोनॉमी बिकॉज जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामाजिक जो जिम्मेदारी है, लोगों की गरीबी हटाना हो या वेलफेयर करना हो, वो सारा आज भी गवर्नमेंट का ही रोल है। बट इन द इकोनॉमिक सिस्टम गवर्नमेंट शुड टेक अ रोल बैक। और तब यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद हमने एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए इकोनॉमी में। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का मतलब पूरा जो स्ट्रक्चरल बेस है जो अभी तक चल रहा था उसको ही आपने चेंज कर दिया। यू ब्रॉट द मैसिव चेंज। इसका मतलब जैसे आप गाड़ी से जा रहे हो, आपने यू टर्न ले लिया, यू टुक अ यू टर्न एंड टुक अ डिफरेंट पाथ। आपने यू टर्न लेके एक अलग पाथ ले लिया, बेस्ड देन व्हाट इट वाज प्राइमरली आप चाहते थे। सो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए और इस रिफॉर्म्स को हम लोग एलपीजी कहते हैं। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एंड इसी को दैट वाज अनवील्ड अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई सामाजिक नीति का उदय हुआ। एंड इन दिस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वी वर एबल टू वी ट्राई टू डेवलप इकोनॉमी ड्यूरिंग दिस पीरियड। नाउ कमिंग टू द बेसिक क्वेश्चन कि ये जो इकोनॉमिक हमने जो चेंजेस किए, इसमें हुआ क्या। मैंने बैकड्रॉप डिस्कस किया कि ये प्रॉब्लम्स क्या थी। एंड हियर हमने पहला काम किया, वी ओपन द इकोनॉमी। अभी तक इकोनॉमी क्लोज थी। क्लोज इकोनॉमी का मतलब क्या है? परफेक्टली क्लोज इकोनॉमी वो होती है जिससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स आर जीरो। विद दैट मीन आप एक्सपोर्ट भी नहीं कर रहे हो और इंपोर्ट भी नहीं कर रहे हो, जीरो है। विच मीन्स एक इकोनॉमी, मान लीजिए इकोनॉमी है, इट इज क्लोज, इसका बाहर से कोई इकोनॉमिक इंटरेक्शन नहीं है, फॉरेन नेशन से कोई इंटरेक्शन नहीं है। ना ये एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन है, बट ऐसा नहीं था कि हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट जीरो था, बट इट वाज वेरी लेस। सो वी वर रिलेटिवली क्लोज्ड इकोनॉमी, नॉट अ परफेक्टली क्लोज्ड इकोनॉमी। ओके, पहली बात तो ये थी। दूसरी बात ये थी कि जो हमारा सो वी ओपन द इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी करके वी लेड कैपिटलिस्ट सिस्टम, यानी हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वेर इन वी अलाउ द प्राइवेट सेक्टर टू फ्लरिश। और हमने यहाँ पर गवर्नमेंट का हमने रोल कम कर दिया। सो रोल बैक ऑफ स्टेट हुआ। एंड व्हाट इज द आउटकम? अगर हम कहें तो एवरेज 6% हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रही है। सो ये जो पूरा फेज रहा है, राइट फ्रॉम 1991 टू मे बी 2020, वी हैव लॉट ऑफ रिफॉर्म्स। हमने बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या आर्थिक सुधार किए हैं। एंड द आइडिया बिहाइंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंट्री। हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? जॉब क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मेकिंग इंडिया डेवलप कंट्री, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, एक जनरल प्रॉस्पेरिटी लेके आना, एंड एवरीथिंग विल हैपन थ्रू मनी रिसोर्सेज। आपकी कंट्री को अगर कॉम्पीट करना है किसी भी लेवल पे, सो यू हैव टू डेवलप, एंड फॉर दैट यू हैव टू अर्न। कंट्री कैपेसिटी को इंप्रूव करना होगा। सो दैट इज व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो हमारा फोकस यहाँ पर है, विल फोकस ऑन एलपीजी, बट हम बाकी इश्यूज भी देखेंगे जो हुए थे इस पीरियड में। सो as I mentioned, new economic reforms which were ushered in 1991, they majorly focused on macroeconomic stabilization। यानी हमारी इकोनॉमी एक अनस्टेबल थी, देयर वाज अ हाई इन्फ्लेशन, कर्जा बहुत, डेट बहुत ज्यादा था, वी आर फेसिंग डेट प्रॉब्लम, वी वर फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ बीओपी क्राइसिस, जहां पे हमारे पास अर्निंग्स नहीं थी, डॉलर्स नहीं थे ताकि हम अपने फॉरेक्स, हमें अपने एक्सटर्नल पेमेंट कर पाए। एंड दैट इज वेयर एट द सेम टाइम वी ब्रॉट स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, पूरी इकोनॉमी को हमने चेंज किया। Now broadly there were two kind of objective, one short term and long term। short term क्या था? जो immediate problem थी उसको handle करना था। okay, what was the immediate problem? कि भी हम डॉलर्स अर्न कर लें, इन्फ्लेशन कंट्रोल कर लें। एंड एट द सेम टाइम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव वाज टू डेवलप द कंट्री, increase economic growth, change the institutions as per the requirement of the global economy, create jobs, ensure that India becomes a big country, India की firms or companies or global arena pe they could become big players, and that was the approach. So we had two major, the short term and long term। long term of course were जो आज हम देख रहे हैं बहुत लेवल पर, जैसे हमारा एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ इज मोर देन 6% इन द लास्ट 3 decades। ओके, एज वी, तो प्रॉब्लम क्या हुआ था? बीओपी क्राइसिस व्हिच क्लाइमैक्स इन 1991, एंड दैट लेड टू मैसिव फिस्कल, यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, डेट ज्यादा हो गया था, एंड बीओपी क्राइसिस। एंड दैट इज व्हेयर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट वर ब्रॉट इन। इनफैक्ट 1991 में पहली बार ऐसा लगा कि कंट्री डिफॉल्ट करेगी। सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी आर टॉकिंग अबाउट कंट्री, एंड आइडली जो भी कंट्रीज होती हैं, कंट्रीज, एवरी कंट्री जो सॉवरेन नेशंस होते हैं, यानी कंट्री इज अ सॉवरेन नेशन, एक इंडिपेंडेंट और फ्री नेशन है विद एब्सोल्यूट पावर ओवर देयर रिसोर्सेज एंड अथॉरिटी। तो एक सॉवरेन नेशन कभी डिफॉल्ट, इकोनॉमिक सिस्टम में दे नेवर, नो डिफॉल्ट कंसेप्ट होता है। दैट मींस कंट्री विल नेवर डिफॉल्ट। कभी कंट्री डिफॉल्ट नहीं करेगा। डिफॉल्ट किस में? अपनी पेमेंट्स में, अपनी ऑब्लिगेशंस में,
आप पे ट्रस्ट कोई क्यों करेगा? आप गवर्नमेंट की तरफ आज देख रहे हो बिकॉज यू ट्रस्ट द गवर्नमेंट, यू बिलीव दैट गवर्नमेंट ओनली हैज कैपेसिटी। आपको लगता है कि गवर्नमेंट अपने आप में, गवर्नमेंट की कैपेसिटी है कुछ भी करने की। सो यू अज्यूम और यू अंडरस्टैंड दैट हमारी जो भी पेमेंट ऑब्लिगेशंस हैं, गवर्नमेंट कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा। आप प्राइवेट पे ट्रस्ट नहीं करोगे बट गवर्नमेंट पे आप ट्रस्ट करोगे। तो हमारा पहली बार ऐसा लगा जब हम अपने डेट पेमेंट्स, हमारे जो कर्जे थे उस पे हमको डिफॉल्ट करना था। तो 1991 में फॉर द फर्स्ट टाइम इट फेल्ट लाइक वी माइट डिफॉल्ट, एंड दैट इज व्हाई इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। अ कंट्री शुड नेवर डिफॉल्ट, ये बेसिक फिलॉसफी है। आप गवर्नमेंट आप गवर्नमेंट बैंक में पैसा रखते हो, आप गवर्नमेंट को लोन देते हो, गवर्नमेंट जो कहती है वो मानते हो, सुनते हो, बट गवर्नमेंट जब वो प्रॉमिस करती है यू आर 100% अश्योर्ड कि गवर्नमेंट वो करेगी। आप गवर्नमेंट जॉब सीख करते हो बिकॉज आपको पता है कि वह सिचुएशन, आज देखो क्राइसिस हो रखी है और आज भी गवर्नमेंट ने किसी की, गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज हैं, प्राइवेट कंपनीज लाइन से सैलरीज काट रही हैं, बट गवर्नमेंट जॉब वाले की गवर्नमेंट जॉब सिक्योर है। गवर्नमेंट ने सिर्फ इतना कहा कि भाई हम आपका सैलरी इंक्रीज नहीं करेंगे, डीए इंक्रीज नहीं करेंगे। इन स्पाइट ऑफ द क्राइसिस गवर्नमेंट इज नॉट टॉकिंग अबाउट सैलरी कट्स। आप सोचिए, देर आर पीपल हु वॉलंटरली 1 दिन का, 2 दिन का, 6 दिन का सैलरी दे रही है, वो भी गवर्नमेंट पुश कर रही है लोगों को, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। मोर देन 2 करोड़ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अगर आज के समय पे अगर कोई स्टेबल है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, जॉब सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड इनकम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सोशो इकोनॉमिक सिक्योरिटी कहीं हो सकती है बिकॉज यू ट्रस्ट गवर्नमेंट। तो पहली बार ऐसा गवर्नमेंट माइट डिफॉल्ट, एंड ये ऐसा हम अलाउ नहीं कर सकते बिकॉज इफ गवर्नमेंट विल डिफॉल्ट देन इट विल, तो फ्यूचर पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। सो वी थॉट दैट वी हैव टू चेंज दिस, और इसके लिए हमें एक मैसिव कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म करना होगा, चेंजेस लाने होंगे, एंड एट द सेम टाइम वी बिलीव दैट दिस रिफॉर्म विल हैव इट्स ओन शेयर ऑफ बेनिफिट। सो 1991 में हुआ, हमने सबसे पहला तो हमने जो मेजर इमीडिएट प्रॉब्लम था उनको एड्रेस किया। इस रिफॉर्म्स को हम लोग राव मनमोहन रिफॉर्म भी कहते हैं बिकॉज इट वाज अंडर द लीडरशिप ऑफ पीवी नरसिम्हा राव जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। एंड हमने क्या किया, हमारी इकोनॉमी को ओपन किया, एंड वी ओपन द इकोनॉमी एंड वी वर एबल टू इंटीग्रेट विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उससे हमने अपना इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दिया। वर्ल्ड इकोनॉमी मींस वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, एक किसी भी दो कंट्री या वर्ल्ड से आप कैसे इंटरेक्ट करोगे? थ्रू ट्रेड, थ्रू बिजनेस, थ्रू मूवमेंट ऑफ पीपल, थ्रू इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, टेक्नोलॉजी का आना, लेबर का आना, लोगों का मूवमेंट होना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होना, ये सब बेसिक अप्रोचेस आर देयर थ्रू विच यू इंटीग्रेट द इकोनॉमी। सो आप, इट इज टू वे, यू डोंट नॉट ओनली ओपन योर इकोनॉमी फॉर अदर पीपल, द अदर कंट्रीज इकोनॉमी इज ऑल्सो ओपन फॉर यू। तो आप वहां जाओगे, बिजनेस करोगे, इंडियन प्लेयर्स कैन गो आउटसाइड, फॉरेन प्लेयर्स कैन कम इनसाइड। जस्ट लुक अराउंड, अपने आसपास देखिए, मार्केट में जाइए, आपको कितनी फॉरेन एमएनसी नजर आती हैं, किसी भी सेक्टर में हो, फूड सेक्टर हो, इंडस्ट्री, बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, यू विल सी दैट अक्रॉस एवरी सेक्टर आपको या तो एमएनसी नजर आएंगे या फॉरेन इंपोर्ट्स नजर आएंगे, इंडियन प्लेयर्स भी नजर आएंगे। एंड दैट हैपेंड आफ्टर 1991। उससे पहले 1991 में ये सारी चीजें नहीं थी। आई रिमेंबर बिकॉज आई वाज बोर्न इन 81, 81 में आई वाज बोर्न। सो व्हेन आई वाज बोर्न इन 81, तो मुझे, हमने कोको कोला पहली बार 90s में कोको कोला का नाम सुना था। उससे पहले हमारे इंडिया में अलग तरह की कोल्ड ड्रिंक चलती थी। लॉट लॉट ऑफ यू पीपल डू नॉट इवन नो 90s के बिगिनिंग में जो कोल्ड ड्रिंक्स थी, आज नाम सुनोगे तो आपको हंसी आएगी। सो आई रिमेम्बर वंस माय अंकल वेंट टू अब्रॉड, तो कोको कोला लेके आए थे 1 बॉटल, एंड हम लोग जैसे दवा पीते हैं वैसे कोको कोला पिया था बिकॉज वी हैड अ ह्यूज जॉइंट फैमिली। सो दैट इज सिट्रा केम क्वाइट लेटर सन, वी हैड गोल्ड स्पॉट एंड थम्स अप तो खैर अभी भी है, गोल्ड स्पॉट, कैंपा कोला वाज देयर। ठीक है, तो सिट्रा तो बहुत बाद में था। तो द पॉइंट आई वांट टू मेक हियर इज दैट आफ्टर 91, बिकॉज आप लोगों को नहीं पता है, आई एम अ पर्सन हु हैव सीन 80s एंड 90s, एंड देयर वाज अ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम 80s एंड 90s। फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने एटीएम देखा था 2000 में। कैन यू बिलीव दैट? कैन यू इमेजिन कि एक मशीन रखी हो जो पैसा देती हो, निकालती हो, यू कैन गो एंड अपना कार्ड लगाओगे पैसा मिलेगा, कार्ड बेस्ड सिस्टम आया। सो फॉर यू पीपल इट लुक्स वेरी नॉर्मल, बट पीपल हु हैव सीन अ लाइफ फेज जहां पर आपको जो है चेकबुक क्लियर होने में 15 दिन लगते थे, आज 2 दिन लग जाते हैं, 1 दिन में हो जाता है, सेम डे हो जाता है। So the point I want to make here is that is because we were able to integrate the world economy, and that led to a lot of technology also coming to in India. अच्छा, पैरेलली जो है इंटरनेशनली भी एक चीज हुई थी, द इंटरनेट रेवोल्यूशन हैपेंड अक्रॉस द वर्ल्ड। सो इंडिया आल्सो विटनेस द बेनिफिट ऑफ इंटरनेट रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो बहुत सारी चीजें हुई। सो इंडियाज इकोनॉमी गॉट ओपन और एक्सपोज फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी। हमने क्या क्या किया? पहला तो हमने, हम अपनी इकोनॉमी को जब क्लोज करते हैं तो वो पुट बैरियर्स।
सो हम बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स लगाते हैं, तो हमने क्या किया था, टैरिफ बैरियर्स लगाए थे, टैक्स बैरियर्स। तो इंपोर्ट वाज नॉट अलाउड, सो वी रिड्यूस इंपोर्ट ड्यूटीज, वी ओपन द प्राइवेट सेक्टर, हमने प्राइवेट सेक्टर को ओपन किया कि आप भी आओ बिजनेस करो। वी डिवैल्यूड इंडियाज करेंसी, हमने करेंसी को वीक किया। और ये सारा मॉडल था एलपीजी मॉडल ऑफ ग्रोथ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके, सो मेन ऑब्जेक्टिव जो इनिशियली था, टू ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन, इंश्योर हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, कंट्री की ग्रोथ बढ़ रहा है बिकॉज ग्रोथ ऑलरेडी प्लमेट हो गई थी, बहुत नीचे थी। इंश्योर देयर इज इनफ फॉरेन रिजर्व, ब्रिंग स्टेबलाइजेशन, एंड ऑल्सो मेक इंडिया एज अ मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी। मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी में क्या होता है, एवरीथिंग इज इंश्योर्ड थ्रू मार्केट। आज देखो, आप मार्केट में आपको जो भी चाहिए आपको मिलता है। द मार्केट सिस्टम इज बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, मांग एंड आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे मार्केट चलता है। एंड हियर द प्राइसेस आर डिसाइडेड बाय द प्राइवेट प्लेयर्स, ठीक है, और ये डिमांड सप्लाई पे चलता है। बट देर आर एरियाज वहां जहां गवर्नमेंट भी है, मे बी रेलवे हो सकता है, मे बी देर आर सर्टन एरियाज लाइक टेलीकॉम भी गवर्नमेंट है, दोज एरियाज आल्सो ड्रिवन बाय मार्केट सिस्टम। रेलवेज आई कैन से नॉट, बिकॉज रेलवे में कोई कंपटीशन नहीं है, बट मार्केट सिस्टम व्हिच मींस डिमांड सप्लाई, देयर विल बी कंपटीशन, और कंपटीशन होगा, इनोवेशन होगा, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू कैप्चर द मार्केट, कैप्चर द बिजनेस, एंड दैट इज हाउ द सिस्टम मूव्स। और हमारे लिए अच्छा क्या है कि हमें क्वालिटी मिलेगा, एंड ऑफ कोर्स that will also create jobs, and जॉब सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड भर में आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी, ठीक है। So it allowed internationally flow of goods, services, capital, human resources, technology, दोनों तरफ से, मींस इंडिया से भी और बाहर से भी। नेचुरली वी वर द बेनिफिशियरी, बिकॉज हमारा गुड्स एंड सर्विसेज, जो सर्विसेज था उसका ग्रोथ हुआ, इंपोर्ट्स बाहर से हुए, टेक्नोलॉजी बाहर से, हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आने लगे, जिसको हम एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। द प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ गया, एंड इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट का रोल था, दैट काइंड ऑफ चेंज। गवर्नमेंट ने एक, आपके लिए गवर्नमेंट पीछे आ गई, देयर वाज अ रोल बैक ऑफ स्टेट। सो द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज बेस्ड ऑन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था, कंपटीशन, बिकॉज यू अलाउ द एंट्री ऑफ प्राइवेट प्लेयर, अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल, बिकॉज देखो, इंडिया, रिफॉर्म्स हैपन इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। 1980s में लैटिन अमेरिका में रिफॉर्म्स हुए थे, ठीक है, लैटिन अमेरिका में रिफॉर्म्स हुए थे। सिमिलरली चाइना ऑल्सो ब्रॉट रिफॉर्म इन 1978, ठीक है। तो बहुत सारी कंट्रीज में, इवन पाकिस्तान वेंट फॉर रिफॉर्म ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो रिफॉर्म्स इकोनॉमी में जो एलपीजी मॉडल पे था, बहुत जगह हुए थे। बट रिमेंबर, लैटिन अमेरिका में इट वाज नॉट अ वेरी सक्सेसफुल। चाइना वाज सक्सेसफुल बिकॉज चाइना के पास अपने कुछ, चाइना बिकेम कम्युनिस्ट से लेके वो कैपिटलिस्ट कंट्री की तरफ चले गए। दो दे से डिफरेंट वे, वो कहते हैं सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स, एक टर्म देते हैं। सो दे आर मोर लाइक अ मार्केट सोशलिज्म। मार्केट सोशलिज्म मतलब मार्केट भी है और सोशलिस्टिक सिस्टम भी है, यानी गवर्नमेंट कंट्रोल है। सोशलिज्म मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल, कैपिटलिज्म मतलब मार्केट ड्रिवन सिस्टम। So the idea was to ensure, unlock the economic potential, encourage private sector, reduce the role of public sector. Public sector मतलब गवर्नमेंट का रोल कम करना हो, कहीं भी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हो, प्रोडक्शन में हो, जॉब क्रिएशन में हो। एंड दीज वर द एरियाज ऑफ रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ट्रेड सेक्टर, फिजिकल सेक्टर। ट्रेड में एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, प्रोडक्शन सारा ओपन हो गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमने बहुत कुछ किया, डी लाइसेंसिंग किया, हमने जो पुराने कंट्रोल्स थे वो हटा दिए। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स हुए, फाइनेंस सेक्टर रिफॉर्म्स में भी अलाउड, बैंकिंग रिफॉर्म्स हुए थे, आपके इंश्योरेंस रिफॉर्म्स हुए थे। फिजिकल सेक्टर में गवर्नमेंट ने टैक्स रिफॉर्म्स किए। सो देयर वर एन नंबर ऑफ रिफॉर्म्स व्हिच हैपेंड इन द एरियाज। एक एक करके देखते हैं। पहला है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में ब्रॉडली एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग हुआ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग? नाउ अर्लियर द लाइसेंस टू प्रोड्यूस समथिंग, दैट इज इंडस्ट्रियल आउटपुट जो होगा, दैट विल ओनली बी अलाउड टू प्राइवेट सेक्टर, यानी प्राइवेट सेक्टर ही आपको अलाउ करेगा प्रोड्यूस करने के लिए। सॉरी, पब्लिक सेक्टर, यानी गवर्नमेंट ही आपको अलाउ करेगी, पब्लिक सेक्टर से ही अलाउड होगा। एंड गवर्नमेंट विल अलाउ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, यानी अगर आपको कुछ फैक्ट्री डालनी है तो आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। एंड अप्रूवल और वेरी स्ट्रिक्ट, बिकॉज यहाँ पर उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, दैट ओनली प्राइवेट सेक्टर शुड फ्लरिश। प्राइवेट सेक्टर अगर, सॉरी, पब्लिक सेक्टर शुड फ्लरिश। तो उनका ऑब्जेक्टिव था कि पब्लिक सेक्टर फ्लरिश करेगा एंड प्राइवेट सेक्टर को हम अलाउ नहीं करेंगे। तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में क्या हुआ, दैट वाज अबॉलिश्ड। नाउ द सेक्टर वाज ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर। लाइसेंसिंग का जो रूल, एक्सट्रीम रेगुलेशन था, दैट आल्सो वाज रिमूव्ड, एक्सेप्ट 5 इंडस्ट्रीज: लिकर, सिगरेट्स, डिफेंस, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स एंड केमिकल्स, ड्रग एंड फार्मर्स। बाद में इनमें भी बहुत सारे रिलेटिव जो है रेगुलेशन जो है हट गए। तो आज हम कह सकते हैं इन एरियाज में भी अगर लाइसेंसिंग है, थोड़ा कंट्रोल्ड है, बट अदर
एरियाज में आप फ्री टू बिजनेस अपना ओपन कर सकते हो, आप कंपटीशन कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग। दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर, देर आर मोर देन 300, यू कैन से 290 टू बी एग्जैक्ट, आर पब्लिक सेक्टर जो है हमारे हैं एट सेंट्रल लेवल, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के। देर आर अराउंड 900 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ड्यूरिंग एट स्टेट लेवल। तो ये जो आप सोचो लगभग 1000 से ज्यादा क्रिएट हुए हैं, ये 1951 से लेकर 1991 के पीरियड में जनरेट हुए थे, और इसमें बहुत सारे ऑलरेडी अब नहीं है। एंड इवन इन दीज पब्लिक जो सेक्टर है सेंट्रल स्टेट में, यहाँ पे भी प्राइवेट का रोल कई एरियाज में बढ़ गया है। सो द आइडिया वाज टू कॉन्ट्रैक्ट द पब्लिक सेक्टर, एंड वो जो कॉन्ट्रैक्शन होगा द स्पेस शुड बी गिवन टू प्राइवेट सेक्टर। नाउ वी कैन सी, सो गवर्नमेंट कंट्रोल रिड्यूस्ड फ्रॉम 17 to 8। अभी सिर्फ 3 एरियाज हैं, रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी एंड डिफेंस, वेयर स्टिल यू कैन से पब्लिक सेक्टर इज देयर। रेलवेज में कंपटीशन नहीं है, एटॉमिक एनर्जी में नहीं है। अब डिफेंस में भी गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट जो है वो स्टार्ट कर रही है, ठीक है। द नेक्स्ट वाज डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज। प्रोडक्शन एरियाज पहले क्या थे, रिजर्व थे। ओके, सो यू आर टाटा, यू आर अ बिग कंपनी, यू कैन नॉट प्रोड्यूस दिस, यू कैन नॉट गो इनटू दिस एरिया, बट नाउ इट इज डी रिजर्व। अब वो डी रिजर्व हो गया है, इट इज ओपन फॉर यू। कुछ ऐसे जैसे कॉटन टेक्सटाइल है या मैन्युफैक्चरिंग है, यू नो, इट विल बी अलाउड ओनली फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, अब वो डी रिजर्व हो गया है, अदर्स कैन आल्सो गो देयर। लैंड एफिशिएंसी करने के लिए द प्राइवेट सेक्टर वर आल्सो अलाउड कि भी आप जो है एग्रीकल्चर यूज कर सकते हो, फार्मर जो है उनको लैंड दे सकता है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस एंटर्ड इनटू सेक्टर ऑफ फार्मिंग, पहले ये रिस्ट्रिक्टेड मोड में था, अब वो रिलेटिवली ये हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हैज कम इन, द न्यू काइंड ऑफ मेथड्स हैव कम अप। सो चेंजेस ये हुए हैं। ओवरऑल यू कैन से दैट जो रिजर्वेशन था दैट हैज बीन रिमूव्ड एंड नाउ थिंग्स आर मोर ओपन इन द इकोनॉमी। प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत तेजी से बढ़ा। वी सॉ एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर, इमर्जेंस ऑफ न्यू इंडियन फर्म्स इन ऑल एरियाज, ठीक है। तो अब producers were allowed, they had liberty to increase their production process, they can enter domestic market, international market। तो हमारी बहुत सारी इंडियन कंपनीज भी वो एमएनसीज हो गई। फॉर एग्जांपल भारतीय एयरटेल, भारतीय एयरटेल ने क्या किया, अक्वायर किया अफ्रीका में, जैन टेलीकॉम का अक्वायर किया। वी हैव टाटाज, वी हैव बिरलाज, वी हैव, तो ये सारे इनका ग्लोबल प्रेजेंस है, दे आर नॉट सिर्फ इंडियन कंपनीज। टाटाज हैव परचेज कोरस स्टील, दे हैव परचेज रेंज रोवर, जैगुआर, ये जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं आज वो टाटा के अंडर में है। Okay, Birlas have also forayed in different parts of South America, in different parts of the world. So सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडिया में इन्होंने कैप्चर किया मार्केट, इवन अलाउड एट द सेम टाइम एक्सपोर्ट्स वर आल्सो अलाउड। अब एक्सपोर्ट्स तो अलाउड है, अब इंडिया में भी हमने क्रॉप्स का एक्सपोर्ट बढ़ाया। सो वी सॉ दैट ओवरऑल इंडियन कैपेसिटी फॉर प्रोडक्शन इंक्रीज। ये अलग बात है कि वी अदर साइड से यानी फॉरेन प्लेयर्स की जो एंट्री इंडिया में होने लगी, दैट नंबर इंक्रीज मोर। तो इंडियन एमएनसीज तो बने, बट फॉरेन एमएनसीज जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे, दे केम टू इंडिया एंड दे वर एबल टू कैप्चर द इंडियन मार्केट, ठीक है। फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। पहले हमारा कैपिटल गुड्स मतलब हैवी मशीनरी, ठीक है, हैवी मशीनरी जो हम लोग यूज करते हैं उसको हम कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। कंज्यूमर गुड्स मतलब फॉर एग्जांपल जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं, कार हो गया, एसी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, आपका कुर्सी टेबल खाना पीना, जो भी कंज्यूमर गुड्स होते हैं। कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए यू नीड कैपिटल गुड्स। सो कैपिटल गुड्स आर द बेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, दे आर बेस ऑफ इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो तो आज हम लोग क्या था, पहले ये गवर्नमेंट ही प्रोड्यूस करती थी, हैवी मशीनरीज हो गए। सो एग्जांपल जैसे आपका भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, इस तरह से बड़े बड़ी फर्म्स थी। अब क्या होता था, बट क्या हो रहा था कि दे वर नॉट एबल टू मीट द डिमांड ऑफ द मार्केट, ये इनोवेट भी नहीं कर पा रहे थे। तो हमने कहा कि अब हमने इंपोर्ट हमने रिस्ट्रिक्ट कर रखा था, बट आफ्टर अशरिंग द रिफॉर्म्स वी सॉ इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, और हमने फॉरेन से इंपोर्ट करना स्टार्ट किया। दैट ब्रॉट मल्टी लेवल्स, इट ब्रॉट टेक्नोलॉजी इन इंडिया एंड बिजनेस हाउसेज प्रोडक्शन। मान लीजिए आपको फैक्ट्री डालना है और आपको कोई अमेरिका से मशीन मंगवानी है सो दैट आपका प्रोडक्शन बूस्ट हो जाए, तो आप पहले अलाउड नहीं था, नाउ इट इज अलाउड। सो दिस काइंड ऑफ हेल्प्ड ओवरऑल, कल्टीवेशन ही बढ़ा, एवरी एरियाज में। जैसे आप कोई बड़ी फैक्ट्री डाल रहे हो तो यू अलाउड टू इंपोर्ट मशीनरी फ्रॉम चाइना और फ्रॉम अदर नेशंस। सो दैट इज हाउ वी वर एबल टू डू दिस। बट उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स भी थे। पॉजिटिव ये था, द फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, बाहर से पैसा आना स्टार्ट हो गया। नाउ व्हेन द कैपिटल इज कमिंग, पहले ये कैपिटल गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज से, अपने बजट से, या गवर्नमेंट इज टेकिंग लोन एंड देन दे इन्वेस्टिंग। But now foreign players are coming and investing in India, so there's a free flow of capital. Second is
इंडियन स्टॉक मार्केट काइंड ऑफ गॉट एन अपॉर्चुनिटी, और स्टॉक मार्केट का ग्रोथ हुआ 90s में। एट द सेम टाइम पॉलिटिकल रिस्क, कोई भी गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है तो प्राइवेट प्लेयर परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, तो गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन नहीं आ रहा है। पहले अर्लियर इफ द पीएसयू इज नॉट परफॉर्मिंग, द ओनस लाइज ऑन द प्राइवेट सेक्टर, सॉरी गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट अच्छा नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल, इफ आई से टुडे बीएसएनएल, so BSNL में you have a question, BSNL is not performing, you question, you blame the government। बट अगर कोई प्राइवेट परफॉर्म अच्छा नहीं करता है या सर्विस नहीं मिलती है, तो आप प्राइवेट को ब्लेम करते हो, गवर्नमेंट को थोड़ी ब्लेम करते हो। सो दैट इज देयर। सिमिलरली डाइवर्सिफिकेशन फॉर इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स का को रास्ता मिला, दे कैन इन्वेस्ट एनीवेयर, दे कैन चेंज दिस थिंग्स। इन्वेस्टर्स मतलब हम लोग मार्केट की बात कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट। देन इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, पूरा क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो गया, कमर्शियल एग्रीकल्चर काइंड ऑफ चेंज, कमर्शियल एग्रीकल्चर बढ़ने लगा, हाइब्रिड सीड्स आने लगे। उसके पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं। सो दीज वर द सम बेनिफिट्स ऑफ लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब अपनी इकोनॉमी को लिबरल बना रहे हो, यू ओपनिंग द इकोनॉमी फॉर बोथ डोमेस्टिक प्लेयर एज वेल एज फॉरेन प्लेयर्स। बट रिमेंबर इट हैज नेगेटिव इफेक्ट इन मेनी एरियाज, वी सॉ डीस्टेबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि बड़े फॉरेन प्लेयर्स, बड़ी एमएनसीज आर काइंड ऑफ इंपैक्टिंग थिंग्स। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया जो बैंकिंग सेक्टर को, इंश्योरेंस सेक्टर को इम्पैक्ट कर रहा है। बैंकिंग इज अ बिग सेक्टर। आज हमारा यू कैन से 65 to 70% सेक्टर ही हमारा गवर्नमेंट ड्रिवन है, रेस्ट 30-35% इज बाई प्राइवेट। प्राइवेट अगेन, प्राइवेट इंडियन एंड फॉरेन फर्म्स। तो बैंक सेक्टर में एफडीआई आने लगा, सो द कंपटीशन हैपेंड। और इससे क्या है, गवर्नमेंट का रोल कम हो गया। एमएनसीज, एक फॉरेन नेशनल आती है इंडिया में, आपको क्या लगता है क्या करती है? व्हेन द फ्लिपकार्ट केम, अमेजन की क्या करती है? आपको तो फ्लिपकार्ट अच्छा मिलता है, अरे इसको सामान सस्ता हो गया। अमेजन ओके वाओ, यू गेटिंग थिंग्स एवरीथिंग। अमेजन म्यूजिक भी मिल रहा है, मूवीज भी मिल रही हैं, यू गेटिंग गुड्स एट अ चीपर प्राइस, यू गेटिंग डिस्काउंट, यू गेटिंग ऑफर्स एंड लिस्ट गोज ऑन। बट सडनली दे आर ह्यूज कंपटीशन टू किराना मेकर्स। दे आर एक छोटा प्लेयर उनके सामने सर्वाइव नहीं कर सकता है, बिकॉज दे आर टेक्नोलॉजिकली रिच, दे हैव रिसोर्स, दे हैव पीपल, दे हैव एक्सपीरियंस, and it's like they are, they are so big that a small player cannot compete. इंडियन प्लेयर्स को जब इकोनॉमी को ओपन किया, तो इंडियन प्लेयर्स कुड नॉट कॉम्पीट विद बिग एमएनसीज। इनफैक्ट कई जगह ये कहा गया, वो इंडियन प्लेयर्स, वो फॉरेन एमएनसीज आए, उन्होंने इंडियन प्लेयर्स को ही ऑक्यूपाई कर लिया। फॉर एग्जांपल बिस्लरी की बात करते हैं, बिस्लरी इज इंडियन ब्रांड, थम्स अप इज इंडियन ब्रांड। जब वो आए तो दे ब्रॉट कोको कोला, कोको कोला लेके आई। कोको कोला ने कहा कि हम थम्स अप को खत्म कर लेंगे, बिकॉज थम्स अप का पूरे इंडिया मार्केट था। देन दे रियलाइज कि थम्स अप की अलग ही बात है, लोगों में एक अलग ही जो है फ्लेवर है थम्स अप का, एक अलग ही चार्म है अमंग द यंगस्टर्स। सो दे सेड ओके लेट्स हैव कोको कोला एंड थम्स अप बोथ। So that was a business strategy, because they knew to Thumbs Up is owned by Coca-Cola today. So earlier Thumbs Up was an Indian brand. So the foreign MNCs, they not only capture the market, they also impact the Indian players who could not compete them. टेक्नोलॉजिकली जो है इंडिया में आया। अच्छा, कई बार ऐसा होता है, दे आर सपोज टू शेयर टेक्नोलॉजी, फॉरेन एमएनसी इंडिया में आ रही है, सो वी एक्सपेक्ट देम कि टेक्नोलॉजी लेके आ रही है और टेक्नोलॉजी शेयर भी कर रही है। बट मेनी अ टाइम दे डोंट शेयर द टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी अपने पास रखते हैं। दे इंश्योर दैट टेक्नोलॉजी इज विद देम एंड दे जस्ट एक्सप्लॉइट द इंडियन मार्केट, दे वांट टू कैप्चर इट। देन मर्जर एक्विजिशन होने लगे। मर्जर एक्विजिशन में क्या होता है, आप छोटे प्लेयर को अपने आप से मर्ज कर ले रहे हो। You are kind of ensuring the smaller companies are not able to perform and survive. So these are the positives and negatives, but remember positives negatives हमेशा रहेंगे। बट ओवरऑल लिबरलाइजेशन का जो कॉमन बेनिफिट है, वो हम लोग ये देखते हैं कि देयर हैज बीन अ पॉजिटिव पिक्चर इन द इकोनॉमी ओवरऑल। हाउएवर जॉब मार्केट हो गया या फैक्ट क्रिएशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज हो गया, वहां कुछ जरूर चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। द सेकंड सेक्टर वाज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये है गवर्नमेंट का रोल कम करना एंड प्राइवेट का रोल बढ़ाना। स्पेशली गवर्नमेंट लेड जो पीएसयूज है, गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, दे नीड टू बी सोल्ड टू गवर्नमेंट। यहाँ पर पीएसयू में गवर्नमेंट का रोल बढ़ाना है। एंड प्राइवेटाइजेशन ब्रॉडली दो तरीके से होता है। वन इज थ्रू सेल ऑफ, यू सेल द एंटायर प्राइवेट सेक्टर, सॉरी पब्लिक सेक्टर टू अ प्राइवेट कंपनी, और यू रिड्यूस द शेयर ऑफ द कंपनी। आप जो शेयर है गवर्नमेंट का वो कम कर देते हो, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। सो पीएसयूज वर सोल्ड टू प्राइवेट सेक्टर, और दे गवर्नमेंट रिड्यूस देयर शेयर, गवर्नमेंट ने धीरे धीरे सिलेक्टिवली अपना शेयर को रिड्यूस किया। सो प्राइवेटाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। अब सवाल ये उठता है कि व्हाई प्राइवेटाइजेशन? Because PSUs were not performing, they were underperforming. PSUs could not compete with the foreign players. PSUs were in heavy losses.
तो जब पीएसयू लॉस में थे तो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारा ड्रेन था. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएसयू? एक पीएसयू का ऑब्जेक्टिव होता है जॉब क्रिएट करना, इनकम जनरेट करना, वेल्थ क्रिएट करना, यू नो अच्छा क्वालिटी आइटम प्रोवाइड करना. बट पीएसयू अगर लॉस में है तो दे आर ड्रेनिंग द रिसोर्सेज ऑफ द गवर्नमेंट. So we can't allow the loss making PSUs. For example, Air India. Air India को गवर्नमेंट बहुत कई सालों से बेचने की कोशिश कर रही है, को खरीदने वाला नहीं मिल रहा है. Okay. So the state assets now they were taken by private sector. Not all areas, only in areas where state assets are not performing. तो जिससे क्या हुआ, इससे एक चीज ये हुई that the intention of the government is clear. Government ये कह रही है कि we are business friendly and we are allowing private people to come. At the same time जो PSUs इंडिया में थे, they also came under pressure. They knew that if you don't perform, हमें भी प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा. So we have to perform as well. So it brought efficiency. जो ऑलरेडी हमारे existing PSUs थे, NTPC हो गया, ONGC हो गया, या बैंक्स हो गए, their efficiency also increased. क्या क्या स्टेप्स होते हैं? पहला, सेल ऑफ शेयर्स ऑफ पीएसयू. आप उनके शेयर्स बेचते हो. गवर्नमेंट स्टार्टेड सेलिंग द शेयर ऑफ द पीएसयू. फॉर एग्जांपल मारुति उद्योग लिमिटेड, इट वाज गवर्नमेंट ओन्ड. किसने स्टार्ट किया था? मारुति उद्योग लिमिटेड वाज स्टार्टेड बाय संजय गांधी. यू विल बी सरप्राइज, इंदिरा गांधी के लड़के ने, संजय गांधी ने स्टार्ट किया था मारुति को. लेटर ऑन सुजुकी केम एंड दे पार्टनर्ड विद मारुति. ठीक है, अब मारुति इज कंप्लीटली ओन्ड बाय, बट उन्होंने अभी भी मारुति नाम मेंटेन किया है. मारुति इज इंडियन वर्ड. ओके, मारुति सुजुकी आप देखते हो. सो मारुति सुजुकी हो गया, बाल्को हो गया, भारत एल्यूमिनियम कंपनी हो गया. एंड इन मेनी सेक्टर्स, इन मेनी पब्लिक सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर का रोल 50% ज्यादा हो गया. अब देखिए, मान लो एक पीएसयू है, इस पीएसयू में 25% इज प्राइवेट सेक्टर का रोल कह लीजिए, या फिर शेयर होल्डर, पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग है, पब्लिक मतलब हम आप जैसे लोग, एंड 75% इज गवर्नमेंट ओन्ड. ठीक है, तो कई जगह ऐसा भी है, गवर्नमेंट कह रही कि नहीं, अब इसको आप चाहो तो हियर दिस कैन बी ब्रॉट डाउन टू लेस देन 50%. तो लेस देन 50% जिस दिन हो जाएगा तो गवर्नमेंट इज द माइनॉरिटी शेयर होल्डर. 50% से ऊपर मेजोरिटी रहेगा. सो दैट इज व्हाट इट वाज अलाउड. डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयूज. तो पहला तो सेल हुआ, दूसरा डिसइन्वेस्टमेंट. गवर्नमेंट reduced their share, the PSUs were which are in losses, and many areas गवर्नमेंट ने अपने एंटरप्राइज को बेचा और अच्छी खासे जो है गवर्नमेंट को अर्निंग भी हुई. ठीक है, obviously private sector was given importance to help industrialization. Now these PSUs could not be able to perform the objective of to industrialize, and new economic reforms हुए. अब जैसे जो करंट ये जो लास्ट ईयर का टारगेट था वो इतना था डिसइन्वेस्टमेंट का, आया नहीं इतना, 65,000 करोड़ ही आया, बट दिस वाज अ टारगेट. सो गवर्नमेंट क्या करती है, व्हेन दे आर सेलिंग देयर पीएसयूज, गवर्नमेंट का रेवेन्यू का अर्निंग्स भी होता है. अब देखो, मान लो एक पीएसयू है और उसको आपने प्राइवेट को बेच दिया. नाउ दिस पीएसयू में भी मान लो 100 करोड़ प्रॉफिट कमा रही है, तो मे बी इसमें 30% या 25% गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है. ओके, सो 25 करोड़ तो गवर्नमेंट की हर साल अर्निंग यहाँ से हो ही रही है. बट गवर्नमेंट बिलीव दैट वंस इट इज सोल्ड टू द प्राइवेट, इसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, एंड मे बी वो 100 करोड़ की जगह 300 करोड़ प्रॉफिट कर सकता है. और ऐसा हुआ भी है. वेरी गुड एग्जांपल इज बाल्को, भारत एल्यूमिनियम कंपनी. इन द होल प्रोसेस ऑफ सेलिंग द पीएसयू टू द प्राइवेट, गवर्नमेंट, मान लो यहाँ पर गवर्नमेंट ने उसको 1000 करोड़ में बेच दिया. ओके, मे बी या 2000 करोड़ में बेच दिया. तो गवर्नमेंट को वन टाइम मनी आल्सो गवर्नमेंट गॉट, एंड हियर व्हेन द प्राइवेट वाज परफॉर्मिंग बेटर, गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू आया. सो गवर्नमेंट के लिए विन विन था. इफ अगर कोई पीएसयू अच्छा कर रही है, पीएसयू अगर अच्छे से खराब से अच्छी हो जाती है, सो दैट इज अंडर प्राइवेट ओनरशिप, देन थिंग्स विल चेंज. तो सडनली आप देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे 25% मतलब 100 करोड़ के अराउंड तो टैक्स दे रहे हैं. The point I want to make here is that कि overall it has benefits and it has challenges as well. तो हम ये देखते हैं कि the benefits are way to win higher in many areas, especially loss making PSU. So you transfer the ownership to the private sector or you disinvestment. तो गवर्नमेंट कंपनीज में ओनरशिप मैनेजमेंट वो पब्लिक प्राइवेट को चला गया, या सेल हुआ, एंड दैट इज हाउ, या फिर गवर्नमेंट ने शेयर अपना जो है कम कर लिया. तो एक होता है आप 100% सेल कर दो, या फिर आप डिसइन्वेस्ट कर दो. डिसइन्वेस्टमेंट भी दो तरह का होता है. एक स्ट्रेटेजिक होता है. स्ट्रेटेजिक मतलब गवर्नमेंट ने अपना शेयर लेस देन 50% कर लिया है. ठीक है. एक माइनॉरिटी होता है. माइनॉरिटी मींस लेस मोर देन, गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट हैज अ मेजॉरिटी शेयर, माइनॉरिटी इज विद द प्राइवेट. ठीक है. तो इस तरह से हमारा अप्रोच होता है प्राइवेटाइजेशन का, जो हम देखने को मिलता है. बेनिफिट्स क्या है? अंडर प्राइवेट फर्म्स एफिशिएंट, प्राइवेट फर्म्स प्रॉफिट मेकिंग ओरिएंटेशन हो जाता है, मार्केट ड्रिवन होता है, सो द डिमांड सप्लाई प्रॉफिट.
पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इंक्रीजेस, सॉरी डिक्रीजेस, जीरो हो जाता है, मार्केट डिसिप्लिन इज ब्रॉट इन। प्राइवेट प्लेयर्स आर वेरी इनोवेटिव इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, वो इनोवेट करेंगे बिकॉज दे हैव टू सर्वाइव। प्राइवेटाइजेशन लीड्स टू बेटर सर्विस कंज्यूमर्स। अब आप क्यों एयरटेल या जियो या फिर इन फर्म्स का जो है सर्विस ले रहे हो? बिकॉज यू नो कि इनकी सर्विस अच्छी है। आप बीएसएनएल का लोगो तो आपको पता है कि सर्विस शायद अच्छी नहीं है, एंड यू माइट नॉट टेक, सो इट हैड इट्स ओन बेनिफिट। ओके, एब्सेंस ऑफ रेंट सीकिंग, करप्शन कम हो गया, प्रमोट्स सो कंपटीशन इन विच हेल्प्स कीपिंग प्राइस लोअर। तो ये सारे बेनिफिट्स प्राइवेटाइजेशन को जो है देखने को मिले। प्राइवेटाइजेशन में फर्म इज ओन्ड बाय प्राइवेट प्लेयर, प्रॉफिट इज द मोटिव, बट रिमेंबर they sometimes ignore the external cost, pollution करते हैं, but they focus on efficiency, innovation, they bring knowledge, they employ best skill। एक प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट जॉब में आपकी सैलरी ग्रोथ एक लिमिटेड रहेगी, बट इन प्राइवेट सेक्टर यू कैन अर्न एज देयर इज नो लिमिट टू द अर्निंग्स दैट यू माइट हैव, बिकॉज यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर योर स्किल, आपको शेयर ही मिलेगा प्रॉफिट में। बट प्राइवेट कैन ऑल्सो लीड टू मोनोपोलीज, प्राइवेट मोनोपोलीज क्रिएट कर सकते हैं अगर स्पेशली इन द एरियाज जो उनके पास नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ट्रेन हो सकता है, वाटर सप्लाई हो सकता है, सो यहाँ पे गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं करती है। अगेन हाउ प्राइवेटाइजेशन इज डन डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्री। It is believed that the areas where there is a business potential, market driven approach, those should be given to the private players। but nationalization मतलब government control, firms का एक अपना advantage है। for example here government will control, जो कंपनीज हैं जो उस फॉर्म में काम करते हैं, दे आर वेरी मोटिवेटेड, दे नो कि गवर्नमेंट में जॉब सिक्योरिटी है। गवर्नमेंट फोकस ऑन सोशल बेनिफिट रादर देन प्रॉफिट मोटिव, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट या फिर आपको जॉब सिक्योरिटी होगा, बट पॉलिटिशियंस माइट इंटरफेयर। गवर्नमेंट कैन सेट प्राइसेस बेस्ड ऑन सोशल फैक्टर्स। कई बार ऐसा होता है कि द प्राइसेस इन द गवर्नमेंट कंपनीज आर बेस्ड ऑन व्हाट सोसाइटी को हम देना चाहते हैं, वेलफेयर बेनिफिट हो सकता है। तो मे बी दैट माइट नॉट डिपेंड ऑन द मार्केट, तो वो शायद खराब भी हो सकता है। इन एरियाज लाइक ट्रेन, वाटर सप्लाई, हेल्थ केयर, यहाँ पे प्राइवेट का रोल शायद इतना अच्छा नहीं है, हेंस यहाँ पे पब्लिक या गवर्नमेंट का रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट डिपेंड्स कि नेशनलाइजेशन यानी गवर्नमेंट कंट्रोल या प्राइवेटाइजेशन, उनके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है। सो प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्री। the areas where private can perform better should be given to private player। the area which conforms to general area, या फिर कह लीजिए एरिया वेयर पब्लिक वेलफेयर इज देयर, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया। फॉर एग्जांपल दिल्ली मेट्रो का ले लेते हैं, तो दिल्ली मेट्रो आपको लगता है क्या प्रॉफिटेबल है? नहीं। तो एक प्राइवेट कंपनी दिल्ली मेट्रो को नहीं चलाएगी, बट गवर्नमेंट चला रही है, बट दे रन लाइक अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो दिल्ली मेट्रो, बिकॉज दिल्ली मेट्रो का जो बनाने का कॉस्ट है बेस्ड ऑन द रिकवरी ऑफ कॉस्ट, इट विल टेक 25 years। नाउ हियर दिस प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं है, बट इट इज गुड फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बिकॉज इट विल क्रिएट अ स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड इट विल क्रिएट पॉसिबिलिटीज ऑफ ग्रोथ। डायरेक्ट बेनिफिट गवर्नमेंट को नहीं होगा, बट इनडायरेक्ट पूरा इकोनॉमी को होगा, and it will usher public transport, it will create pollution कम होगा, it will ensure economies of scale, healthy होगा, safe होगा, all these things are there। so again it depends कि गवर्नमेंट कहाँ जाएगी और प्राइवेट कहाँ जाएगी। गवर्नमेंट वहां जाती है where it is not possible for private sector to perform। government will go where the social concern is higher than the profit concern, ठीक है। again quality of regulation, ठीक है। कई बार ऐसा होता है टुडे प्राइवेट सेक्टर अलाउड टू ग्रो, बट जहां गवर्नमेंट फोकस ऑन रेगुलेशन, क्या मार्केट कंपटीशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कंज्यूमर इंटरेस्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करते हैं, बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट विल आल्सो टेक इनटू कंसिडरेशन दैट की पब्लिक जो सेक्टर्स हैं, सॉरी प्राइवेट जो सेक्टर्स हैं, उनको हम क्वालिटी कंट्रोल भी करें, उनके ऊपर फाइन लगाएं अगर वो कोई चीज बात नहीं मानते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम प्राइवेट सेक्टर हैज ओन एडवांटेज, दे क्रिएट जॉब, दे क्रिएट वेल्थ, they ensure the best people get job, it create a spirit of entrepreneurship। हमारे आप जैसे लोग अगर कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, they can do business, they can create, there are people with huge dream and vision can create state of the art companies, big firms, and that has happened in India's economy, ठीक है। so that is how, so privatization के अपने अपने benefits हैं and challenges हैं। we cannot say that everything should be privatized, but yes, areas which where public can perform better should be given to public sector, areas where private can perform better should be given to private sector। what should be the extent of regulation, again it will depend on कि भाई रेगुलेशन ऐसा होना चाहिए कि सब चीजें अच्छे चले। कंज्यूमर इंटरेस्ट इज प्राइमरी। फॉर एग्जांपल हमको मोनोपोली इंश्योर नहीं करना है। व्हेन देयर इज अमेजन, हमको चाहिए कि अमेजन हो तो फ्लिपकार्ट भी हो,
और मे बी अभी शायद रिलायंस एंड जियो का भी डील आने वाला है। सो जब मल्टीपल प्लेयर्स होंगे तो वो हमारे लिए अच्छा है। अगर हमारे पास जियो है, ओके, अगर हमारे पास जियो है तो एयरटेल भी होना चाहिए, आइडिया भी होना चाहिए, वी शुड हैव बीएसएनएल वेल। क्योंकि अगर अगर एक प्लेयर की मोनोपोली हो जाएगी देन दैट इज नॉट गुड फॉर द मार्केट, बिकॉज मोनोपोली जो है वो दे विल ट्राई टू एक्सप्लॉइट द सिचुएशन। सो कंपटीशन इज द की फॉर, एंड कंपटीशन आल्सो इंश्योर्स कि देयर इज कांस्टेंट इनोवेशन और सर्विस डिलीवरी पे फोकस हो अच्छे से, because you will pay for the good quality services. So that is how the concept of privatization can be understood. ठीक है, तो ग्लोबल लिबरलाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, देन ग्लोबलाइजेशन। जब लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ग्लोबलाइजेशन इज अ वे फॉरवर्ड, ग्लोबलाइजेशन इज द नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप। जब इकोनॉमी को आप लिबरलाइज करते हो इंटरनली तो you are pro business or pro market. When you are liberalizing the market externally, that means we are globalizing the economy. Globalization means you are integrating the India's economy with the world economy. You're opening India's market for the world, and you ensure there is a integration of the economies that will lead to interdependence as well. So independence भी होगा, interdependence भी होगा, and there are certain advantages as well, but challenges भी होंगे. So globalization is a way in which we can, इट्स लाइक द होल वर्ल्ड इज वन बिग मार्केट, आपने पूरे वर्ल्ड को एक बड़ा सा मार्केट बना दिया है, और जो बैरियर्स हैं अक्रॉस कंट्रीज ट्रांसनेशनल बाउंड्रीज वो अब सारे हट जा रहे हैं। ओके ओके, सो ग्लोबलाइजेशन, बट रिमेंबर ग्लोबलाइजेशन इज ओनली अबाउट इकोनॉमी, हम लोग फोकस हमारे इकोनॉमी पे होता है, बट ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट एनवायरमेंट, इट इम्पैक्ट सोसाइटी, इट इम्पैक्ट कल्चर, इट इम्पैक्ट पॉलिटिक्स। आज ये कोविड क्राइसिस क्यों हुआ है इंडिया में? बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस क्यों हो रहा है? बिकॉज ग्लोबलाइजेशन में इकोनॉमीज आर इंटरलिंक्ड, पीपल आर मूविंग अक्रॉस। अगर बाहर से इंडिया में लोग नहीं आते तो क्या ये कोविड क्राइसिस होता? अगर मान लो गवर्नमेंट को पता होता कि ऐसा होने वाला है, हमको क्या, आपको पता था ऐसा होने वाला है? हमें नहीं पता था, बिकॉज जो प्रॉब्लम हो रही है वो 2 हफ्ते बाद दिखाई दे रही है। आप पहले प्रॉब्लम आ रही है, सोल्यूशन आपको बाद में दिखाई दे रहा है। इंडिया ने रिस्ट्रिक्ट किया एंट्री ऑफ पीपल फ्रॉम चाइना, इटली, स्पेन, बट पता चला कि वो दुबई से आ रहा है, सऊदी अरेबिया से कोविड के लोग आ रहे हैं। वो लोग, गवर्नमेंट उनको जो है स्क्रीन करना सोच सोच नहीं पाई, गवर्नमेंट को समझ नहीं आया स्क्रीन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और फिर वो लोग लेके आ गए। देन ऑफ कोर्स, सो द पॉइंट आई वांट टू मेक हियर इज द वन ऑफ द एस्पेक्ट इज ग्लोबलाइजेशन। अगर वर्ल्ड जित व्हाई द इम्पैक्ट इज सो हैवी इन वेस्ट यूरोपियन नेशंस एंड इन यूएसए, बिकॉज दे आर हेवीली इंटीग्रेटेड, और वहां पे इंडिविजुअल राइट्स और फ्रीडम के नाम पे गवर्नमेंट एंड बिजनेस को, दे आर वेरी प्रो बिजनेस, दे आर मोर प्रो बिजनेस देन इंडिया। तो वहां पर एंड उनको लगा कि अरे ये तो नॉर्मल फ्लू है, इसको हम हैंडल कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था, थिंग्स वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। और व्हेन इंडिया के साथ एडवांटेज ये था कि वहां पहले आया और हमको दिख गया वहां प्रॉब्लम, एंड वी वर एबल टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज। सोचो आज 1 महीने से ऊपर लॉकडाउन हो गया है इंडिया में, इट इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अ मंथ, अगर आज की बात करते हैं 1 मंथ कंप्लीट हुआ है लॉकडाउन का, एंड 1 मंथ में यू आर नॉट सपोज टू मूव आउट योर हाउस, आप घर से बाहर नहीं जा सकते हो, आप बिजनेस नहीं कर सकते हो, आप मूव नहीं कर सकते हो, आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो, बट स्टिल इंडिया में देखो कितने केसेस रोज 1000 1200 1500 केसेस आ जा रहे हैं। इमेजिन करो इकोनॉमी ओपन होती तो कहाँ किस लेवल पे जाता। ओके, सो ग्लोबलाइजेशन के एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, विल कम टू देम वन बाय वन। ओके, सो होल वर्ल्ड इज वन ग्लोबल विलेज, ठीक है, टैकल्ड विद ग्लोबल एफर्ट्स, सोशल इकोनॉमिक इंटरेक्शन अमंग ऑल पीपल। तो सोशल इंटरेक्शन भी इकोनॉमिक इंटरेक्शन है, बट रिमेंबर ये जो कंसेप्ट है ये पुराना है, इट इज नथिंग बट अ ओल्ड कंसेप्ट। हमारे एंशियंट हिस्ट्री में कंसेप्ट था वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव मींस, वसुधा मींस होल वर्ल्ड, कुटुंब मतलब फैमिली, तो होल वर्ल्ड इज वन बिग फैमिली, तो वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। तो पूरा जो है हम एक कुटुंब के हैं, द होल वर्ल्ड इज वन कुटुंब, वन बिग फैमिली। सो दिस कंसेप्ट हैज ऑलवेज बीन देयर, बट रिमेंबर जब आप पूरे वर्ल्ड को एक बड़ी इकोनॉमी बना रहे हो तो देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल economy, there is a concept of global politics, there is a concept of global global governance, there is a concept of सब कुछ global। और ये जो global होता है तो it's like there are international rules, international laws, international regulations we have to follow। आपने एक जमीन खरीदी और जमीन पे अपना घर बना लिया, उस जमीन पे अपना घर बना लिया, उस घर में आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कोई पूछने वाला नहीं है। ओके, आपने गाड़ी टेढ़ी खड़ी कर दी, गाड़ी आगे खड़ी कर दी, आपने गेट में आधी गाड़ी आगे आधी गाड़ी पीछे खड़ी कर दी, कोई पूछने वाला नहीं है, nobody is questioning you। You can do, of course there are certain regulations by municipal corporations or maybe blah blah blah, but mostly you are free to do on this land। बट आपने एक सोसाइटी में फ्लैट खरीदा, सो जो सोसाइटी में फ्लैट कर रहा है तो आपको सोसाइटी के रूल्स फॉलो करने होंगे, कमिंग रूल्स, गोइंग रूल्स, मे बी पार्किंग रूल्स,
पेमेंट करना होगा, ये करना होगा, एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर. You can't do anything because once you're part of the society, you're not living alone. There are maybe hundreds or thousands of people living. तो वहां जब 1000 लोग रह रहे हैं या 100 लोग रह रहे हैं, तो एक हमें एक रूल सिस्टम बनाना पड़ेगा which will be common for everybody and which will bring order and stability and growth. So globalization और global इकोनॉमी जब हुई तो ग्लोबल पॉलिटिक्स, ग्लोबल गवर्नेंस, तो ग्लोबल गवर्नेंस में हमारे पास यूएन है आज, WHO है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ओके, एंड द लिस्ट गोज ऑन, UNFCC है, ठीक है. तो हमारे पास बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हम पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. सो एट इकोनॉमिक लेवल ओके, बट मेनी टाइम्स इट फील्स लाइक कि आपकी कंट्री की जो सॉवरेनिटी है, आपकी जो फ्रीडम है, आपकी जो संप्रभुता है, दैट इज आल्सो बीन क्वेश्चन. यू फील दैट कि गवर्नमेंट या स्टेट का कंट्रोल नहीं है इस पे. हमारा अगर हम कोई इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते हैं, अभी इंडिया ने अभी FDI पॉलिसी में अमेंडमेंट्स किए कि चाइना से इन्वेस्टमेंट अगर आएगा तो वो गवर्नमेंट रूट की तरह जाएगा, तो वाया गवर्नमेंट रूट. अर्लियर वो ऑटोमेटिक रूट में था, फ्री था. तो जब किया तो चाइना ने कहा यूर, आप जो है WTO के रूल्स को जो है आप वायलेट कर रहे हो. WTO rules are global trade rules. So suddenly, because once you are a part of the global village, global world, global economy, you have to follow global rules. At one end, it is good because you're getting money, you're getting technology, you're getting people, and that is two way, both sides. But at the same time, there are problems as well. So it depends, कि globalization के अपने benefits और challenges भी हैं. And let's try and understand the concept कि उसमें problems क्या हैं and challenges क्या क्या हैं. Okay, so primarily globalization के 4 components हैं. फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, गुड्स का फ्लो जो है, गुड्स एंड सर्विसेज आप कह सकते हो, अक्रॉस बाउंड्रीज, यानी देयर आर नो ऑब्स्ट्रक्शंस ट्रेड के. फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, फॉरेन से इन्वेस्ट आ रहा है FDI के फॉर्म में, FII के फॉर्म, मार्केट्स में जो इन्वेस्ट होता है. इंश्योरिंग एनवायरमेंट वेयर टेक्नोलॉजी कैन कम इन इंडिया. आज टेक्नोलॉजी बाहर से आ रही है. व्हेन यू मेकिंग बुलेट ट्रेन, द टेक्नोलॉजी इज कमिंग फ्रॉम जापान. व्हेन यू मेकिंग मेट्रो, the technology was shared by so many countries. When we are creating a new plant, technology is coming from outside. Okay, at the same time free flow of labor भी बाहर से आ रहा है. या इंडिया के लिए तो उल्टा है, because our labor is going outside. So we can say goods, capital, so there is a free flow of goods, services, capital, technology and labor. तो हर लेवल पर आपको देखने को मिल रहा है कि there are more freedom. So basically you are making the world as one big market, and that is how it happens. So integration of Indian economy with the world economy, opening the economy, entry of foreign player, FDI, investment, removing barriers, and ये प्रोसेस 1980s में स्टार्ट हुआ, बट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में एक तरह से आप कह लो कि मैक्रो लेवल पे उस पे काम किया, एंड द मेजर एरियाज जो ग्लोबलाइजेशन के थे उस पर हमने काम किया. ओके, सो ग्लोबलाइजेशन के स्टेप्स क्या है? पहले FDI, आपने मार्केट्स को ओपन किया. यू अलाउ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स. तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन फर्म जो इंडिया में इन्वेस्ट करती है, मेनली MNCs. सो MNCs बिकम व्हीकल्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ये क्या करती हैं? एरियाज में हेल्थ, एजुकेशन, एनर्जी, हर सेक्टर में इन्वेस्ट करती हैं. बट रिमेंबर, व्हेन द इन्वेस्टमेंट इज डन, ट्रेड इज डन, यू हैव टू फॉलो इंटरनेशनल रूल्स. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल फॉलो करने होंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रूल फॉलो करने पड़ेंगे. तो ये एक चैलेंज भी है, बट रिमेंबर यू विल सी दैट बेनिफिट्स आर मे बी दे विल आउटवे द चैलेंजेस. ठीक है, राइज ऑफ मल्टीनेशनल फर्म्स एंड कॉर्पोरेशंस, जॉब क्रिएशन होगा. फॉरेन MNC आ रहा है. आई एम श्योर, आई वर्क इन MNC, मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स आर वर्किंग इन MNC, मेनी ऑफ यू बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे पढ़ते हैं, जो ऑनलाइन में है, दे आर वर्किंग इन वेरियस MNCs. इंप्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी आई. आज देखो कोई भी टेक्नोलॉजी कहीं से आ रही है, इंडिया इंडिया जो ग्लोबल वर्ल्ड है वहां सबसे पहले आता है. इससे क्या हुआ? व्हेन द बिजनेस इज ग्रोइंग, गवर्नमेंट को रेवेन्यू बढ़ेगा. ओके, सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ राइज ऑफ मल्टीनेशनल एंड ट्रांसनेशनल कंपनीज. आप देखो इंडिया में बड़े बड़े फर्म्स हैं एंड MNCs हैं, एंड दे हैव इन्वेस्टेड इन इंडिया हेवीली. बट नेगेटिव्स भी हैं. व्हाट आर द नेगेटिव्स? गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं. दे वांट द पॉलिसी शुड बी कंड्यूसिव टू देम. वो प्रॉफिट अपना बाहर लेके जा रहे हैं. जब आप 50 रुपए का बर्गर खाते हो मैकडोनल्ड्स का या बर्गर किंग का, तो 10 रुपीज वो USA में वापस जाता है. ओके, सो दे विल टेक द प्रॉफिट बैक टू देयर ओन कंट्री. जो छोटा बिजनेस है, दे कैन नॉट सर्वाइव ड्यू टू लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस. स्मॉल कंपनीज गेट आउट ऑफ बिजनेस. देयर इज अ विशियस सोशल साइकिल. स्मॉल कैन नॉट सर्वाइव. In fact, it is said that foreign companies, MNCs, they use Indian companies as doormat. वो इंडिया में एंट्री में उनकी हेल्प लेते हैं, बाद में उन्हीं को खा जाते हैं. They create pollution, वो डैमेज टू एनवायरमेंट करते हैं. एंड सडनली आपने देखा होगा पोल्यूशन हो रहा है, इंडस्ट्री डाल रहे तो पोल्यूशन, दे आर हार्डली कंसर्न्ड बिकॉज प्रॉफिट इज द प्राइम थिंग.
नेचुरली इनको गवर्नमेंट रेगुलेशन करना होता है. सो देर इज वन व्यू कि इसे ड्रेन ऑफ वेल्थ भी होता है. अगर वो कुछ लेके आ रहे हैं, if they are investing 100 rupees, believe me, every year they want 10 rupees going back to the country. तो जो आपने इन्वेस्ट किया है वो 10 साल में वापस चला जाएगा. बट हम कहते हैं अरे नहीं भी, जॉब क्रिएट हो रहा है, दे विल स्टे हियर फॉर एवर, यू नो, इंडिया विल गेट एक्सेस टेक्नोलॉजी. और इंडिया के लिए भी तो ये ऑप्शन होगा, इंडियन प्लेयर कैन ऑल्सो गो आउटसाइड. सो इट्स अ टू वे डील, इट्स नॉट वन वे डील. सेकेंड इज एक्सपेंशन ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. आप देखो क्या है, इंटरनेट, टीवी है, सैटेलाइट केबल है, फार्मिंग, एजुकेशन, पॉलिसिंग, मेडिसिन, बैंकिंग. You all see that these areas have benefited because of information technology revolution. And IT का regulation जो है, जो IT का regulation था वो एकदम कम हो गया 91 के बाद. And this, you know, 90s का जो phase था, it was a growth of IT sector and that helped all this other sectors. So IT हो गया, IT enabled service हो गया, BPO industry हो गया, KPO industry हो गया. They create jobs, they create benefit society. Lakhs of people are getting, more than 4 million people work in IT sector in India. सिर्फ आईटी सेक्टर. और ये लोग, दे आर, यू कैन से दीज पीपल डायरेक्टली क्रिएट जॉब्स. ये डायरेक्ट जॉब्स हैं, डायरेक्ट जॉब्स. एंड $100 बिलियन से प्लस जो है हमारा एक्सपोर्ट होता है, सर्विस एक्सपोर्ट होता है. सो ये जो 4 मिलियन पीपल हैं, ये एडिशनली 10 to 12 मिलियन पीपल इनडायरेक्ट जॉब जनरेट करती हैं. ठीक है. सो यू कैन इमेजिन द अमाउंट ऑफ बेनिफिट. इंडिया इज द बैक ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया मतलब पूरे वर्ल्ड का बैक ऑफिस है. इंडिया के बिना उनका कंपनी नहीं चल सकता है. So that is very important thing is कि globalization has benefited some sectors immensely and heavily, but there are social problems as well. Social problem में सबसे में क्या हुआ है, feminization of labor हुआ है. ठीक है. Many a times जैसे industries हुई तो there is a migration of male population from rural to urban areas. Rural से urban की तरफ male population जो है जा रहा है. तो women are required in job market in rural areas. तो वहां क्या हुआ, feminization of labor means female are getting jobs, but moment female को job मिलती है, there is a problem because यहाँ पे wage parity का issue होता है. There are also security concern which can be there. इंडिया में ये सारा हर लेवल पे देखने को मिलता है, in lower income group and higher income group both. Women are preference in soft industries. आपका टेक्सटाइल हो गया, ये तो यहाँ पे soft women are more are there. एंड दैट इज वन ऑफ द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर. जो इनफॉर्मल सेक्टर है, यहाँ पर जॉब जो होता है इनसिक्योर जॉब्स है, ये मार्केट ड्रिवन जॉब्स है. ठीक है. मार्केट अच्छे चलेगा तो जॉब मिलेगी, मार्केट नहीं चलेगा तो जॉब चला जाएगा. तो वन सोशल नेगेटिव इफेक्ट इज देयर हैज बीन अ फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर एंड दैट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग. बट रिमेंबर, वुमेन, एजुकेटेड वुमेन इन द मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, दे हैव बेनिफिटेड आल्सो इमेंसली. तो ऐसा नहीं कि एवरीथिंग इज बैड और नेगेटिव. दे हैव बीन पॉजिटिव्स एज वेल. एंड व्हाट डू वी सी, दैट आईटी सेक्टर हो गया, एजुकेशन, इफ यू आर एजुकेटेड एंड यू आर स्किल्ड, you will feel कि भाई अपॉर्चुनिटी मिली है. ये अलग अलग बात है कि दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम विच वुमेन फेस इन द जॉब मार्केट, वो प्रैक्टिकली हर इंडस्ट्री में, हर कंट्री में देखने को मिलता है. इंडिजिनस नॉलेज. अभी आप नीम, आप क्या कर रहे हो, आपको चोट लगी, आपने नीम के पत्ते तोड़े और आप उसका एक काढ़ा बनाया और अपने शरीर पे लगा लिया. आपको शरीर दर्द कर रहा है, आपने हल्दी डाला दूध में और दूध पी लिया, या हल्दी का आपने पेस्ट बना लिया, या हल्दी का पेस्ट बना लिया, हल्दी का क्रीम बना लिया. देयर आर सम मेडिसिनल एंड थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ हल्दी और नीम. आयुर्वेदा, पहले ये हम लोग जब यूज करते तो वो लोग, बाहर के लोग हंसते थे, बट दिस वाज ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम. अब जब वो इंडिया में आया तो उन्होंने देखा इसको कमर्शलाइज करेंगे. इन्होंने पेटेंट कर लिया आयुर्वेदा का, नीम कंट्रोवर्सी का. बाद में इंडिया ने जो है क्वेश्चन किया कि आप कैसे कर सकते हो. सो दे काइंड ऑफ दे वर, बिकॉज दे वांट टू मेक मनी. अब कोई आप उत्तराखंड की पहाड़ियों में जाते हो, वहां पर एक एक कोई हर्ब होता है, उस हर्ब को आपने जो है आप मेडिसिन की तरह आप यूज करते हो. एंड दैट हैज बीन सिंस हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, 500 ऑफ इयर्स, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स. एक एमएनसी वहां पहुंचती है, उस हर्ब का एक गोली बनाती है और उसको पेटेंट करा लेती है कि अरे हमारा बनाया हुआ है. तो विल क्वेश्चन दैट पेटेंट कि ये क्या कर रहे हो, ये तो हम हमेशा से करते रहे हैं. if you are doing, first of all, the patent is not allowed because this is traditional knowledge of India. This is traditional knowledge of India and hence the benefit अगर आप लेते भी हो, it has to be shared with common people, with Indians. So traditional medicine हो गया, knowledge are getting recognition. तो positives भी है, negatives भी है. वो exploit करने की कोशिश करते हैं. If we are not attentive, the exploitation भी हो सकता है. So indigenous knowledge kind of is getting recognized also, but it has been exploited also. Next is poverty. पहले क्या था, जॉब मार्केट, जॉब जो है फैक्ट्री रिलेटेड जॉब्स थी. नाउ these factory related jobs have been replaced by informal jobs.
which are owned by the private player. तो यहाँ क्या है, poverty has increased, growth, the benefit has happened. Who is getting benefit? Educated and skilled people are more getting benefit. आप educated हो, you are English speaking, you know how to make a code, you write a software, or you are good in personality, you can communicate better, you can bring business, you can bring sales. तो आपकी growth है, आपकी value है. But what about masses? उनको नहीं benefit मिल रहा है. So the beneficiaries of growth are few. कुछ जो अपवर्डली मोबाइल है, मिडिल क्लास है, उनको फायदा मिला है. बट जो लोअर इकोनॉमिक सोसाइटी है, दे आर स्टिल लिविंग इन द स्टेट ऑफ पेनरी, द स्टेट ऑफ डिसरिगार्ड, द स्टेट ऑफ चैलेंजेस एंड कॉन्फ्लिक्ट. तो बेनिफिट ऑफ द ग्रोथ जो है वो ट्रिकल डाउन नहीं हुआ है. द बेनिफिट ऑफ ग्रोथ हैज नॉट रीच्ड. अगर हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन में, तो अर्बन एरियाज को बेनिफिट मिला है, रूरल एरियाज आर प्रैक्टिकली अनटच्ड, वहां ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट देखने को नहीं मिला है. दिस हैज लेड टू सिचुएशन क्या है, इनइक्वालिटी बढ़ गई सोसाइटी में, द रिच बिटवीन रिच एंड पुअर के बीच गैप बढ़ गया है. सो देयर इज अ ह्यूज मल्टीप्लेक्स, देयर इज ह्यूज बिल्डिंग, एंड देयर इज उसके बगल में, उस बिल्डिंग में जितने लोग नहीं रहते हैं उससे 5 गुना लोग बगल में स्लम्स में रहते हैं. सो देयर इज अ ह्यूज स्काई स्क्रैपर्स इन मुंबई, एंड देयर इज अ ह्यूज धारावी एज वेल. सो देयर हैव बीन प्रॉब्लम्स एज वेल. लैंड एक्विजिशन, इट अफेक्ट्स मेनली द पुअर. लैंड एक्वायर किया गया डेवलपमेंट को, तो पुअर का लैंड ले लिया गया, रूरल पॉवर्टी बढ़ी, there has been unequal distribution of wealth. Now poor people mostly are into lower income group और agriculture. वो सेक्टर्स है, वहां ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट इतना देखने को नहीं मिला है. So there have been a problem of lack of distribution justice. There have been problems of violence also. Now these people, अगर जॉब नहीं मिलेगा, helplessness होगा, तो violence will be a natural outcome. So this is the other aspect of the globalization that we can see. ठीक है. कल्चरली, कल्चर के क्या इम्पैक्ट पड़ा है, फूड हो गया, ड्रेस हैबिट हो गया, लिटरेचर हो गया. तो अभी आप फ्यूजन ड्रेस पहन रहे हो, आप सुबह इंडियन फूड खा रहे हो, शाम को जो है यू आर गोइंग टू अ लेबनीज रेस्टोरेंट और इटालियन रेस्टोरेंट और फ्रेंच रेस्टोरेंट. सो दैट इज ह्यूज इम्पैक्ट ऑन फूड्स, क्लोथ्स, कल्चर. बट ग्लोबलाइजेशन ऑफ कल्चर हो गया है, अच्छी बात भी हुई है. अनऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स हैव बीन क्वेश्चनड. रोल ऑफ टीवी एंड इंटरनेट हैज इंक्रीज. व्हाट इज हैपनिंग इन यूएस से, उनके कल्चर में क्या हो रहा है, आप यहाँ पे तुरंत उसका वीडियो देख ले रहे हो. ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग हो रहा है. देयर हैज बीन एडवेंट ऑफ सेकुलर फेस्टिवल्स. तो वी हैव festivals like Valentine's Day, Rose Day, this day, that day, Mother's Day, Father's Day, Cousin Day. Okay, क्या हो रहा है, अब किसको बेनिफिट मिल रहा है मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली फॉरेन एमएनसीज को बेनिफिट मिलता है. ठीक है. सो देयर हैज बीन, टूरिज्म हैज इंप्रूव्ड, देयर इज अ एडवेंट ऑफ हाइब्रिड कल्चर. ठीक है. हम लिव इन रिलेशनशिप आ रहे हैं, मे बी एलजीबीटी मूवमेंट इंडिया में हुआ है, एंड ऑफ कोर्स लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड. एक लिबरल इंडिविजुअल का एक ग्रोथ हो रहा है, इंडिविजुअल वैल्यूज की बात हो रही है, फ्रीडम लिबर्टी की बातें हो रही हैं. And these have been there. Now remember, we cannot be West nation. हम वेस्ट की तरह हमारे यहाँ फ्रीडम या लिबरल नहीं आ सकता है. हमारी जो फैमिली रोल है, उनका रोल वो रहेगा, बट इट हैज बीन डाइल्यूटेड more than what it was earlier. So that is how we see the culture thing has been definitely impacted by the globalization impact. And at the same time, कहीं ऐसा भी नहीं है, we are also witnessing a very positive change, जहाँ पे हमको ये देखने को मिलता है कि there has been a movement or effort where ग्लोबलाइजेशन से हमें ये भी देखने को मिलता है कि दैट वी आल्सो गेट एक्वेंट. एक इंटरनल मूवमेंट भी चल रहे हैं कल्चरल रिफॉर्म करने का, या कल्चरल ग्रोथ कराने का, या फिर गेटिंग बैक टू योर रूट्स का. तो ये सारे जो बेनिफिट्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं. सो देयर आर पॉजिटिव्स एंड देयर आर नेगेटिव्स ऑन बोथ साइड. थिंग्स हैव चेंज नाउ. तो ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट है, इकोनॉमिक बेनिफिट भी है, देयर आर चैलेंज एज वेल. ठीक है. Similarly, mixing of cultures, migration हो रहा है. Now, when you travel in India, what do you see? इंडिया में आपको कई तरह के लोग नजर आ रहे हैं. You have Indians living here. Indians में तो ऑलरेडी इतना सारा हमको रेंज नजर आ रहा है लोगों का. And now what we see that within India जो हमारे इंडियंस हैं, ये फॉरेन नेशन से भी लोग आ रहे हैं. ठीक है. तो मिक्सिंग ऑफ कल्चर हो रहा है. इंडिया में इतना नहीं है, बट यस, इंटरनल है, इंट्रा है, बट एक्सटर्नल से इतना नहीं है. बट न्यू आइडियाज, फैशन, ट्रैवल, टूरिज्म, ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग. ग्लोबल ब्रांड्स आ रहे हैं, ग्लोबल सिविल सोसाइटी आ रहा है, प्रेशर ग्रुप्स आ रहे हैं, देयर एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस मूवमेंट, ह्यूमन राइट्स की बातें हो रही हैं. सो नाउ थिंग्स आर नॉट लाइक व्हाट इट वाज. यू कैन नॉट क्लोज द इकोनॉमी. गवर्नमेंट कुछ करती है तो इंडियन क्रिटिसाइज करें ना करें, देयर आर फॉरेन पीपल यू कैन क्रिटिसाइज इंडिया.
सो देयर इज अ स्ट्रांग चेक एंड बैलेंस, कहीं ना कहीं वहां वेस्टेड इंटरेस्ट भी देखने को मिलते हैं. मेनी अ टाइम्स दीज ऑर्गेनाइजेशन, दीज बॉडीज हैव देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट, बट दीज आर द आउटकम. ये पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों इसके हैं. देयर इज अ न्यू एरा ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस विद द इमर्जेंस ऑफ बॉडीज लाइक यूएन, वर्ल्ड बैंक, and they are more towards the shifting and emerging economies. So that is how we can see that globalization has impacted. Urban level पे देखने को मिला, new cities, global cities, urban centers, cosmopolitan cultures, you know, demographically population is moving, you are adapted to multicultural societies. मैं अपनी बात करूं, so I did my engineering almost 15 years ago, and many of my friends are living in west nations. और कुछ तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी वहां सेटल हो चुके हैं, they have they have taken a house. उनमें कुछ ऐसे हैं जो they have married an American. Okay, ऐसे भी कुछ लोग हैं. The point I want to make here is that that has happened because globalization is happening. They're going there, they're settling there. Some of them don't want to come to India. अगर वो आते भी हैं तो वो 2 दिन के लिए घूमने के लिए आते हैं. Okay, so demographically there is a rise in international migration. There is growth of these things, international migration, rise of multicultural societies. English has become a link language, or English nahi now. If you are learning Mandarin today, you are learning new kind of languages today. Maybe Latin American languages. So that will, because that will usher you opportunities across. अगर आपको Mandarin आती है, Japanese आती है, तो you can easily go and do a job there, and there is a huge demand for such people. There has been environmental impact as well. ठीक है, environmental क्या हुआ है? Pollution, स्पेशली कंट्री लाइक इंडिया में पोल्यूशन बढ़ गया है, ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है. द परस्यूट ऑफ वेल्थ, परस्यूट ऑफ मेकिंग मनी, परस्यूट ऑफ प्रॉफिट, दैट हैज इम्पैक्ट इन सोसाइटी. अभी आप देखो कोविड क्राइसिस की वजह से क्या हुआ, एवरीथिंग इज स्टॉप टुडे. बाहर बड़ा सफाई चल रही है. आई रिमेम्बर फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एम सीइंग, आई कैन सी द ह्यूज, मेरी जो बिल्डिंग जहां मैं रहता हूँ, this is end of Delhi, and after 500 meters Noida starts, and I can see the skyline of Noida. From my flat I can see the skyline of Noida. दूर तो मुझे नोएडा नजर आ रहा है. I can see maybe the far off areas which I could not see maybe a month ago, and that is because of pollution. इतना था Delhi में, pollution is notorious, we already know. So the point I want to make here is that because of because of business, because of growth in trade, business, economy, industries, pollution, vehicles, ये सब देखने को मिल रहा है. Okay, so there have been arguments and there have been favor, but remember, globalization is here to stay, and hence you have to find a way out. You have to ensure that the benefits of globalization are used. Benefits of globalization are used, exploited as per the requirements of the economy. Okay, so we have to find a way out. We have to ensure that the benefit of globalization reaches the masses, job creation हो, किसी भी तरीके से हमारा जो losses हैं, जो negatives हैं, they are taken care of. You have to make a fairer world. हमें एक fairer world बनाना पड़ेगा, which will work for everybody. So we have to ensure that against वाले जो areas हैं, where masses को job कैसे मिले, how the benefit of globalization reaches in terms of job opportunities कैसे बढ़े, how do we are able to tackle climate change के जो issues कैसे हो पाएंगे, welfare हम कैसे, because that is the key thing, right? welfare हमारा objective है, हमें welfare करना ही करना है. तो there have been pro and there have been against. तो arguments globalization के दोनों हैं, but remember हम लोग बहुत आगे आ गए हैं. We can't take a vehicle back. हम गाड़ी घुमा नहीं सकते हैं. Okay, and so you have to exploit the force of globalization. जो negatives of globalization को उनको हमें handle करना है, जो positive है उसमें हमें उसको we have to get the opportunity as much as we want. So the globalization के दोनों के positive and negative हैं. Negatives we all know that rich poor divide बढ़ा है, wealth has been in few hands. Internally जो है balanced development जो है नहीं हुआ है. For example, we have states like Gujarat, we have states like Maharashtra, we have states like Karnataka, we have states like Tamil Nadu. They have been major beneficiaries of globalization. NCR region है, we have NCR, we have Mumbai, we have Pune, we have Secunderabad, we have Hyderabad, we have Chennai, we have so these are Ahmedabad. यही benefit हुआ है क्या? यही इंडिया है? India is made of 135 crore people. There are more than 600 cities in India. Okay, so Keshav, I'll discuss that question. Okay, so globalization has positives as well as negatives.
डिवाइड्स हुए हैं। वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन की जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी और डिवाइड है वो बढ़ गई है। एंड देयर हैज बीन राइज ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म आल्सो, जो कि भी एक ग्लोबल फिनोमिना है। देयर हैव बीन कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल कल्चर, लॉस ऑफ आइडेंटिटी, डिक्लाइन इन वैल्यूज। तो ऐसा नहीं है, देयर आर पॉजिटिव्स एंड देयर नेगेटिव्स, बट नेगेटिव्स आल्सो देयर, सो वी हैव टू एड्रेस दीज एरियाज। एंड हेंस यू नो विल सी द टाइम टू कि चीजें कैसे होंगी। बट ग्लोबलाइजेशन का जो इंडिया का प्रोसेस था वो बिग बैंग नहीं था, वो ग्रेजुअल था, स्लोली we brought reform slowly and we brought little changes over time, so that अगर हम बिग बैंग करेंगे तो उसका इम्पैक्ट हमें पता नहीं होगा, एंड दैट इज वेयर हाउ थिंग्स विल चेंज। सो डिफरेंट गवर्नमेंट्स आया, सबसे पहले पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट आया, उसके बाद 1998 में यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट आई, दे ब्रॉट रिफॉर्म्स, दे एंड सिलेक्टिवली हुआ, पहले आपने इम्पोर्ट ड्यूटी कम किया, देन यू वर ओपनिंग द मार्केट स्लोली एंड स्लोली, then at the same time the Vajpayee government was very pro business, they're very pro business, and इन्होंने जो रिफॉर्म असर किए, those reforms were unprecedented, इकोनॉमिक ग्रोथ ही मेंटेन किया, एंड रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स वर ब्रॉट इन, दे अलाउड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इन इंडिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगा, दे ब्रॉट लेजिस्लेशंस ऑफ इंश्योरिंग द इंश्योरेंस सेक्टर, इंपोर्ट्स के जो बैन था वो उन्होंने हटाया। So I'm not going to nitty-gritties, but that is how the things were there. So that completes the ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस इन द 21st सेंचुरी। बट आफ्टर 21st सेंचुरी में आने से पहले हम लोग को दो तीन चीजें डिस्कस करनी पड़ेंगी। देयर आर फ्यू मेजर इवेंट्स इन द वर्ल्ड दैट कैन आल्सो बी सीन, दैट वन इज ऑपरेशन शक्ति। व्हाट एग्जैक्टली इज ऑपरेशन शक्ति, एंड लेट्स अंडरस्टैंड। ऑपरेशन शक्ति से पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। सो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड, एक कहानी की तरह सुन लेना आप। The first country to have nuclear capability was USA, and USA tested its nuclear capability by bombing Hiroshima and Nagasaki, जो आपको ऑलरेडी पता है 1945 में 6 अगस्त and 9 अगस्त को जो हुआ 1945 में। So after Hiroshima and Nagasaki, the world witnessed a new era of global nuclear arms race. 48-49 में यूएसएसआर ने अक्वायर कर लिया, देन ब्रिटेन, देन फ्रांस, एंड इवेंचुअली तो जब ये जो बड़ी कंट्रीज थी, स्पेशली द विक्टर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, दे रियलाइज कि न्यूक्लियर आर्म्स रेस अगर होगा तो सबके पास ये न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएंगे, एंड दीज कैन बिकम वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, WMD हो जाएगा। नाउ दीज वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कैन finish the humanity, can finish everything that we have created, historically, maybe thousands of years or maybe millions of years, and they cannot be allowed to grow and proliferate. उनको हमको बढ़ने देना नहीं है, and that is where discussion started, and they came to a conclusion, and this led to a signing of very important treaty called NPT, non proliferation treaty। proliferation मतलब तुमने कहा कि non proliferation treaty होगा। this was signed in 1967, 68 to be precise, और इसका जो डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, डेट ऑफ स्टार्ट था वो 1970 था। नाउ अ कट ऑफ डेट वाज डिसाइडेड, और इन्होंने कहा कि 1 जनवरी 1967, 1 जनवरी 1967 तक जिन कंट्रीज ने भी न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर कर लिया है, ओके, सो दे विल बिकम, सो दे सेड देयर विल बी, एनपीटी विल हैव टू काइंड ऑफ कंट्रीज, ओके। पहला तो होगा न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, एंड दिस वाज द कट ऑफ डेट 1 जनवरी 1967, and rest of the other country will be non-nuclear weapon state, and everybody will have to sign the treaty। और अब क्या होगा, nobody after the signing treaty can have a nuclear weapon for military purpose, they can have nuclear material or nuclear technology for civilian purpose, for power generation, for food processing, for medical treatment, but not for bomb making। तो एनपीटी ने क्या किया कि एनपीटी ने ये कह दिया कि भाई ये ट्रीटी होगी, और इस ट्रीटी में जिसने भी 1967 तक न्यूक्लियर वेपन एक्वायर कर लिया, नाउ दीज नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स व्हिच वर एक्सेप्ट ऑल 5 नेशन, यानी 5 नेशन जिसको हम P5 नेशन कहते हैं या N5 नेशन कहते हैं। सो इसमें कौन 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 है, यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस एंड चाइना, बिकॉज चाइना ने भी लास्ट 66 में चाइना ने किया था, एंड दे फोर्स्ड ऑल द कंट्रीज द वर्ल्ड टू साइन। इंडिया ने मना कर दिया, इन्होंने कहा ये क्या है, वी ऑल्सो हैड द कैपेबिलिटी, बट हमने वी वर वोटरीज ऑफ पीस, और हम न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट करना चाहते थे,
under Nehru and maybe other leaders also. But when Indira Gandhi came, she said, no, this is wrong. She opposed the treaty. इन्होंने कहा कि हम साइन नहीं करेंगे because this treaty is very discriminatory. इन्होंने कहा this is creating a situation. अच्छा, इसमें क्या था, जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, they have all the freedom. इनके ऊपर कोई रोक नहीं है. But the new countries cannot do anything. उनको न्यूक्लियर वेपन एक्वायर नहीं करना है because they wanted that nuclear weapons बढ़ना नहीं चाहिए. या तो एक तरीका ये है कि सभी लोग अपना न्यूक्लियर वेपन खत्म कर दें and have a non-nuclear world. But that is not possible because इनके बीच भी आपस में भी conflict था, USA, USSR के बीच. So and every country want to have technology. So that was a problem. When India was said to sign, India ने कहा नहीं करेंगे. और 1974 में हमने पहली बार अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को डेवलप किया because चाइना के पास आ गया था and suddenly found that Pakistan is also dabbling with these things. And that is where हमने इस 1974 में अपना पहला टेस्ट किया न्यूक्लियर का, and that was called project Smiling Buddha. Smiling Buddha. So India kind of got, but ये cutoff date cross कर गए तो we could not become. तो पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी ने हमें क्रिटिसाइज किया. बट ये जो टेस्ट था बहुत बेसिक टेस्ट था. इट वाज अ वेरी स्मॉल टेस्ट एंड टू बिकम अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट ऑफ तो आपको कैपेबिलिटी अपनी शो करनी पड़ेगी. उसके बाद चाइना was getting stronger. So Indian leadership had two kind of people. One people supported that we should have nuclear capability, and BJP government was one of the people. Even many other leaders also they felt that कि India को strong बनाना पड़ेगा. So Pokhran 1 जो था that was 1974 Operation Smiling Buddha. When Vajpayee became the prime minister, he wanted. अच्छा, उससे पहले PV Narasimha Rao was the prime minister. He also wanted. 1995 में वो भी टेस्ट करना चाहते थे. बट PV Narasimha Rao अंडर द प्रेशर ऑफ USA, और USA सर्वेलेंस अपना उनका पूरा इंटेलिजेंस नेटवर्क इंडिया के अगेंस्ट चल रहा था बिकॉज दे वांटेड टू सर्वेलेंस करने इंडिया को एंड दे डू नॉट वांट कि इंडिया के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या कैपेबिलिटी आए. तो वो सैटेलाइट से करते थे बिकॉज जो पोखरान वाला एरिया जहां हमने टेस्ट किया था, तो इंडिया वाज अंडर ह्यूज प्रेशर. तो उस प्रेशर को जो है हैंडल करने के लिए इंडिया को उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए, एंड इंडिया फेल्ट दी इज अ बेसिक फिलॉसफी, स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट स्ट्रेंथ. अगर आप स्ट्रांग हो तो ही आपकी वैल्यू होगी, अगर आप वीक हो तो आपकी वैल्यू नहीं होगी. नोबडी इज गोइंग टू क्वेश्चन द वीक. एवरीबडी जो स्ट्रेंथ जो स्ट्रांग होते हैं उन्हीं की वैल्यू करते हैं. तो इंडिया बिलीव्ड, द लीडरशिप बिलीव्ड इन दिस, एंड दैट इज वेयर इंडिया टेस्ट इट्स कैपेबिलिटी. और हमने पोखरान टेस्ट किया 1990 में 11th में 1988, 11th और 13th 2 दिन हमने. इस दिन 3 न्यूक्लियर टेस्ट किया, इस दिन 2. तो देयर आर टोटल 5 न्यूक्लियर टेस्ट वी वर कंडक्टेड, and the main objective was to make India, and India said that we are a nuclear weapon state. ये अलग बात है, इंडिया इज अ नॉन सिग्नेटरी ऑफ एनपीटी. इंडिया ने मना कर दिया है. देयर आर 4 कंट्रीज, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल एंड सूडान, साउथ सूडान. सो दीज 4 कंट्रीज आर नॉर्थ कोरिया. तो ये कंट्रीज के ने जो है साइन नहीं किया है बिकॉज फॉर देयर ओन रीजन. सो इंडिया सेड दैट वी हैव the technology to develop fission and thermonuclear weapons, and हम एक nuclear weapon state है and we can match anybody, which means now we are a stronger nation, nobody can question us. So Pokhran, as I said, there were 5 detonations of fusion and fission bombs. Operation Shakti under the leadership of Atal Bihari Vajpayee, APJ Abdul Kalam, and ये जो 5 थे 1 2 3 4 उनका शक्ति 1 2 3 4 5 नाम दिया गया. So India became a full-fledged nuclear state, and National Technology Day of India जो है वो 11th मई को हम लोग जो है सेलिब्रेट करते हैं. Okay, naturally we were expecting, USA नाराज था, everybody was unhappy. By it's like 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली. Okay, so USA is threatening because now what these countries fear that this will lead to nuclear weapons arms race in South Asia. Because Pakistan ने भी बाद में किया and Pakistan was able. So the criticism happened from across many countries, Canada, UK, France, Russia. UK, France, Russia refrained from condemning India because India said it is not about we are not having nuclear weapon to bomb some. We are just telling it is a strategy of maybe a self-reliance. It is a strategy of telling the world, see, we also have the technology. और अगर आप घर में बंदूक रखे हो मतलब नहीं गोली चलाओगे. बंदूक का मतलब ये है कि see, I have the gun and I can secure myself. So nobody dare threaten me, whosoever who you are. You are a developed country, you can have, but India is also a nuclear weapon state. Okay. So that was one. The second was Operation Vijay, Operation Safed Sagar. Operation Vijay, जो कारगिल वॉर हुआ था, that was the one of the fiercest conflict of India.
between India and Pakistan. It was not exactly a full-fledged war like 65 and 71, but definitely क्योंकि ये localized एक particular area में था. But the Kargil जो district है जम्मू एंड कश्मीर का, they had lot of strategic points, and these strategic points को पाकिस्तान की जो मिलिट्री या उनके जो मुजाहिदीन जो जिहादीज कह लीजिए, उन लोगों ने क्या किया, देयर वाज अ नेचुरल, एक हम लोग भी एक्सेप्टेड रूल था कि हम लोग इन स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे ठंड में वापस चले जाएंगे, ठंड में हम विल विड्रॉ रिट्रीट बैक, एंड हम गर्मी में फिर इन पोस्ट पे वापस आ जाएंगे. व्हाट दे डिड, that they captured the strategic peaks which were in control of India, and India had to start a very strong and rather costly operation of Operation Vijay and Air Force Operation Safed Sagar, because इनको reacquire करना अपने आप में चैलेंजिंग था. देखो 98 में वो हुआ, so India was already under criticism of West nations. So यहाँ पर India had to play this card very, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या क्या था. तो ये जो कारगिल आपका है, यहाँ पे कारगिल में आपका दिस इज, तो यहाँ द्रास, कारगिल, बटालिक, ये पूरा सेक्टर था. दीज आर स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स. यहाँ टाइगर हिल एक पॉइंट था. तो ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स थे, मींस इफ एनीबॉडी विल कंट्रोल, नाउ दे कैन कंट्रोल. तो कंट्रोल करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंडिया का सप्लाई लाइंस इंपैक्ट होगा, लद्दाख का रेंज हो गया या फिर मेन रोड्स हो गए. And here you can, so there will be also always security concerns, so we cannot allow this, and this was a line of control के अंदर आके आप कर रहे हो, which means you are आप इंडिया की सॉवरेनिटी को इम्पैक्ट कर रहे हो. एंड दैट टू, सो पाकिस्तान की ये इंटेंशन हमेशा से रहे हैं, उनको लगा कि अब मौका है. ओके, सो दे सेड दैट, एंड रिमेंबर इट वाज अ पीक. तो आप स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे हो, आप ऊपर बैठा हुआ है और नीचे से आप गोली चला रहे हो, तो जो ऊपर जो बैठा हुआ है उसके पास ज्यादा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, एक लेवरेज है. सो दे न्यू दैट कि इंडिया को ये पीक्स को रिकैप्चर करने में इट वोंट बी इजी. वन वे वाज कि भाई आप क्या करो कि आप पूरा ये क्रॉस करो, इधर से घूम के आप आओ, अच्छा आते हैं बेटा. But India wanted to avoid this, so it led to heavy human casualty on our side. So this mainly took almost a year after the entire, May, July 1999 in Kargil district, which was part of Balistan district of Ladakh before partition 1947, and was separated by the LOC after first Kashmir war. The conflict began when Pakistani army, along with Mujahideen, reoccupied the forward positions and strategic peaks of Kargil, Dras, and Batalik. Operation Al Badr was the name given by Pakistan's infiltrators. So, but India ने क्या किया? Force and diplomacy both were used, because India was already under sanctions of UN Security Council after 1998 जो हमने nuclear test किए थे. And this was in context of India decided to not to cross the line of control. हमने कहा नहीं करेंगे. And so India got a lot of support from domestically and internationally as well. So India was able to win diplomacy war. At the same time, we were able to go there. But this was the first war which was so publicized, first television war. Blood donations happened. June, by the end of June, US government and European Union all threatened sanctions of Pakistan if we did not withdraw to side of LOC. International pressure was building up. Pakistan traditionalized Organization of Islamic Conference, उन्होंने भी जो है question किया. Okay, so India Kargil war marked the first instance in history of South Asian conflict that US strongly supported India. Indo-US nuclear deal एक decade बाद हुई. Okay, India was able to bear international pressure on Pakistan, especially after फिर बाद में भी attacks हुए. So that was the Kargil war that we discussed. तो Kargil war अपने आप में एक strategic, but I believe that Kargil war के अपने एक human consequences भी जो है बहुत ज्यादा थे, and that is where we are supposed to understand. तो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट का जो पीरियड था, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर पे आते हैं मनमोहन सिंह. he was the architect of 1991 reforms, and उनकी गवर्नमेंट ने भी बहुत कुछ रिफॉर्म्स लाया, लाइक बजट के रिफॉर्म्स लेके आए. They tried to reduce the debt of the country by reducing the fiscal deficit, and private investment को support मिला. To develop the country, the infrastructure, a new concept of public-private partnership came. Technology-based Aadhaar was an innovation which happened during that time. ये अलग बात था कि आधार का सिर्फ आइडिया आया था, they could not implement on the grand scale. Okay, GST का जो स्टार्ट हुआ था वो इन्हीं के रिजीम में हुआ था. Okay, so them coming to Modi years. Now Modi, came in 2014, और 1984 के बाद for the first time in 30 years a government came with full majority. क्योंकि इसके जो पूरा पीरियड था, रिमेंबर इन द इकोनॉमिक इंटायर टर्मोइल पीरियड वी हैड अ कोलिशन गवर्नमेंट. इंडिया में कोलिशन गवर्नमेंट्स आई. कोलिशन गवर्नमेंट विच मींस कि जो गवर्नमेंट थी वो फुल पावर नहीं थी. सो द रिफॉर्म एजेंडा जो
उतना स्ट्रांग नहीं था। रिफॉर्म एजेंडा को आपको सबको साथ लेके चलना पड़ता था, तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है चैलेंज जो देखने को मिलता था। सो व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड हियर इज दैट this was a period when India for the first time got full majority, and here government जब full majority में होती है तो उसमें उनके पास बहुत power होता है। Two major broad things which happened under Modi was demonetization and of course the GST reforms happened. तो यहाँ पर एक बिग बैंग अप्रोच, पहले का जो रिफॉर्म था वो ग्रेजुअलिस्ट अप्रोच था, बट हियर दिस गवर्नमेंट वाज दे वांटेड टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड ऑफ टाइम। और जो पहला रिफॉर्म था व्हिच हैपेंड वाज डीमोनेटाइजेशन ऑफ हाई करेंसी नोट्स ऑफ 500 रुपीज 1000 जो गांधी वाले नोट्स थे, एंड दैट वाज समथिंग व्हिच हैपेंड ऑन 8th नवंबर 2016। गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी कि अराउंड 4 to 5% टोटल जो करेंसी सर्कुलेशन में था दैट वाज 15 लाख करोड़। तो 15 लाख करोड़ की करेंसी जो 500 and 1000 का था, तो ये आपने इसको कह दिया कि ये इट इज नो नॉट अ लीगल टेंडर, यानी ये लीगल मनी नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप ये पैसा रिप्लेस करोगे एंड न्यू मनी विल बी गिवन। बट रिमेंबर व्हेन यू विल कम एंड टू द बैंक टू रिटर्न द ओल्ड मनी, आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका ये पैसा, ये सोर्स ऑफ फंड क्या है, ये आपका प्रॉफिट है या इनकम है। सो ऑल द ब्लैक मनी इट वाज अज्यूम्ड दैट माइट नॉट बी एबल टू कम बैक। कहेंगे उनको, गवर्नमेंट को ये उम्मीद था कि अराउंड 3% ऑफ दिस, लगभग नहीं 3% नहीं 20% ऑफ दिस, लगभग 3 लाख करोड़ के अराउंड जो पैसा जो है वो वापस नहीं आ पाएगा। एंड दिस मनी विल ब्रेक द बैकबोन ऑफ द ब्लैक इकोनॉमी, जो शैडो इकोनॉमी थी, ब्लैक बोन इकोनॉमी थी, सॉरी ब्लैक इकोनॉमी थी। बट जब लेटर रिपोर्ट केम, ऑलमोस्ट 99.3% ऑफ डीमोनेटाइज्ड नोट केम बैक, एंड हार्डली जो आप कह लीजिए कि 10,000, जो हम गवर्नमेंट का 3 लाख था वो टारगेट, उसके हिसाब से 10,000 करोड़ पैसा ही जो है वापस आप कह लो कि वापस नहीं आया था, विच मीन्स गवर्नमेंट गॉट द बेनिफिट ऑफ दिस ओनली। सो डिमोनेटाइजेशन लार्जली वाज नॉट अ वेरी सक्सेसफुल दिस थिंग, बट इट शोज द स्ट्रॉन्ग नो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस, या फिर एक सॉफ्ट पॉलिसी की जगह हार्ड पॉलिसी डिसीजन का आप कह लो इम्पैक्ट दिखाई दिया। But demonetization impacted the industrial production, it impacted the informal economy, it impacted the GDP growth, हमारी कंट्री का ग्रोथ इम्पैक्ट हुआ। and it is believed that new notes में आने में almost 8,000 crore was there, lakhs people got jobless, some lives were also lost, GDP also got impacted। ठीक है, जो गवर्नमेंट का ये कहना है कि डिमोनेटाइजेशन का इंटेंशन सिर्फ ब्लैक मनी हटाना नहीं था, इट वाज आल्सो अबाउट फॉर्मलाइजिंग द इकोनॉमी। इकोनॉमी को हम फॉर्मल बना रहे थे। फॉर्मल मतलब कि एवरीथिंग इज अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। जब आप कोई बिजनेस करते हो और गवर्नमेंट को नहीं बताते हो तो दैट इज इनफॉर्मल इकोनॉमी। ठीक है, आप जब मान लो आपने कोई बिजनेस किया और गवर्नमेंट को आपने टैक्स नहीं पे किया, दैट इज इनफॉर्मल इकोनॉमी। ओके, so that is how। then the next reform was GST, goods and service tax। again मैं इसको बेसिक लेवल पे देखूंगा बिकॉज टैक्सेशन जब पढ़ाऊंगा तो डिटेल में देखूंगा। तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म आया। इट इज वन ऑफ द मोस्ट, मुझे लगता है कि इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इट इज द बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म दैट हैज हैपेंड सिंस 19 यू कैन से 51। और यहाँ पर इट इज अ कॉम्प्रहेंसिव, और इसने 17 टैक्स को मर्ज करके इट वाज रिप्लेस विद वन टैक्स। सो द आइडिया वाज वन इंडिया वन टैक्स। आप सारे टैक्स बढ़ा के वन इंडिया वन टैक्स लगा रहे हो, और ये टैक्स का जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको आप हटा रहे हो, रिमूव कर रहे हो, and that is the biggest indirect tax reform in the country। Okay, so you can see the process started during Vajpayee regime only, but by the time it be implemented, it 2017 को जो है वो जो है लाइव हुआ। क्या इम्पैक्ट था टैक्सेस में, जो कैस्केडिंग इफेक्ट था मल्टीपल टैक्सेशन का, दैट वाज सॉल्व्ड। it ensured the business can become formal, compliances were less, efficiency is there, तो ये सारे बेनिफिट देखने को मिले। गवर्नमेंट का रेगुलेशन, बिजनेस बिकेम इजी बट रेगुलेशन काइंड ऑफ यू कैन से बिकेम मोर इफेक्टिव। ठीक है, बट इट इज वन, मतलब एक साइड है पिक्चर का, ये पूरा पूरा सही नहीं है। देयर बीन बेनिफिट्स एंड देयर बीन नेगेटिव्स एज वेल। जीएसटी ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड होता है। स्टेट गवर्नमेंट सीजीएसटी, अगर आपने बिल कभी देखा हो तो सीजीएसटी एसजीएसटी, सॉरी सीजीएसटी, तो मान लो 12% है तो 6% स्टेट गवर्नमेंट को जाता है एंड 6% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। तो यहाँ पर स्टेट जीएसटी, जीएसटी, और इंटर स्टेट ट्रेड में, जहाँ पे दो स्टेट इन्वॉल्व है ट्रेड में, वहाँ पे आईजीएसटी होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। सो बेसिकली देयर आर थ्री काइंड ऑफ जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, बट वो बाद में मर्ज किए करके एक ही जीएसटी की तरह हम लोग मेजर करते हैं। ओके, सो ये सारे टैक्स को रिप्लेस करके गवर्नमेंट ने एक टैक्स लगाए थे। ठीक है, ठीक है, सो इट इज बिलीव दैट फ्यूचर में जीएसटी विल चेंज वे द बिजनेस इज हैपनिंग। धीरे धीरे गवर्नमेंट जीएसटी को और इम्प्रूव कर रही है।
corruption free tax, business friendly है, consumer friendly है, and overall GST is going to change. It's going to be game changer in the coming years. So as far as Modi years are concerned, Modi years में एक और चीज हुआ, 2014 में जो इलेक्शन हुआ, वो 2019 में जो इलेक्शन न्यू हुए, so Modi government continued. I personally believe that one of the most positive impact of Modi government has been that with all its controversies, मोदी गवर्नमेंट ने सबसे जो पॉजिटिव चीज जो मुझे लगता है कि है, दे हैव मेड गवर्नमेंट स्कीम्स इन सच अ मैनर दैट दे आर रीचिंग द मासेस, बिकॉज इतनी कॉम्प्लेक्स कंट्री में, इतना डिवाइडेड पॉलिटी में, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, एंड मोदी हैज बीन एबल टू रीच आउट टू द मासेस. ही नोज, आई पर्सनली बिलीव दैट मोदी हिमसेल्फ इज अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. वो अपने आप में एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है at the level of his understanding of Indian society, you know, and इतने बिग बैंग रिफॉर्म करने के बाद भी आप इंडिया में वापस आ रहे हो. 91 में रिफॉर्म हुए तो कांग्रेस लॉस्ट इलेक्शन और कांग्रेस को आने में 10 साल लग गए, एंड ही वाज एबल टू दैट. जो मेगा गवर्नमेंट की स्कीम्स हों, या वो जनधन हो गया, या फिर आपके जो है उज्ज्वला स्कीम हो गया, या सौभाग्य स्कीम हो गया, हर घर बिजली स्कीम हो गया, उज्ज्वला में गैस सिलेंडर दे रहे हो आप, कुछ ऐसी स्कीम्स थी जिससे लोगों के मासेस में पहुंचा. अर्लियर हिस्टोरिकली मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट स्कीम्स हैव मोस्टली बीन नॉट good enough, they have failed to an extent, but here it is because these government schemes have actually reached the masses. तो वो एक बहुत मेजर एस्पेक्ट था, एंड दैट इज व्हाई पीपल, स्पेशली द लोअर इनकम पीपल, दे रियलाइज द बेनिफिट, और उन्होंने फिर से चोज हिमसेल्फ इन द मोदी अगेन. And here you can see there's a high degree of continuity. And Modi government has also done on the economic front. They have been ensured की government growth. Reforms जब करते हो तो growth में impact होता है. It's like कि you when you bring reform, जो current system है उसको आप change करते हो. And when you bring the change in the current system, new system को आने में थोड़ा time लगता है, adapt होने में, stabilize होने में. For example, the way business were doing, they were happening in a certain way. Now suddenly you brought a new tax. और जब नया टैक्स ला रहे हो तो people will have to adapt to the new tax system. So that is अपने आप में चैलेंजिंग होता है. कंटिन्यूशन ऑफ न्यू लिबरल इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना हुआ हो, ओपननेस हुआ, हमारा वन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा इंप्रूव हो गया वर्ल्ड वाइज. मोदी गवर्नमेंट हैज बीन अप्रेज्ड फॉर देयर इकोनॉमिक रिफॉर्म दैट हैव हैपेंड. ठीक है, तो कई चीजें हुई, जैसे एफडीआई सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंप्रूव हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी काम हुआ, मैसिव हुआ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली आधार वाज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ कांग्रेस, बट इसका बेनिफिट किसने उठाया? मोदी गवर्नमेंट उठाया. दे यूज टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी से आधार सीडिंग किया. एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. नाउ हु वाज द पर्सन बिहाइंड आधार? You all know that Nandan Ninikani, the leader of he was the head of Infosys. So he was created to be a person behind this आधार आइडिया. तो आधार का एक है कि हम एक डिजिटल आईडी देंगे, and digital ID will be given to every individual in the country, and this digital ID will be mapped to your different areas. For example, इसको हम अकाउंट से, बैंक अकाउंट से मैप कर सकते हैं, इसको हम आपकी वेलफेयर स्कीम से मैप कर सकते हैं. सो दिस डिजिटल आईडी कैन इंश्योर दैट कि भाई आप ह्यूमन एलिमेंट रिमूव हो जाएगा इसमें. अब मुझे एक, जैसे पीएम किसान है, पीएम किसान में गवर्नमेंट ने एक शॉट में ऑलमोस्ट 7 समथिंग करोड़ फैमिलीज को वन शॉट में, वन डे में thousands of crore rupees ट्रांसफर किया. Why? Because they had Aadhaar seeded account. So the idea behind digital ID is that these digital ID will help the better identification. Because one of the problems of government schemes has always been, कल को आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे तो आप देखोगे कि one of the problem which government scheme में देखने को मिलता है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि गरीब को आइडेंटिफाई कैसे करें. हाउ डू वी आइडेंटिफाई द पुअर? बिकॉज उसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग वर्क होता है. सो दैट डिजिटल आईडी, आधार, बायोमेट्रिक सिस्टम हैज चेंज्ड द वे द बेनिफिट्स आर रीचिंग टू द मासेस. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मोदी गवर्नमेंट में इकोनॉमिकली जो है दे हैव बीन चैलेंजेस एंड दे हैव बीन पॉजिटिव्स एज वेल. ठीक है, सो ओवरऑल इट कंप्लीट्स द टुडेज लेक्चर. आई टेक सम क्वेश्चंस. इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं लिबरलाइजेशन के, पब्लिक इंटरेस्ट. यू कैन रीड देम and you can write if you want these answers. So this was the last lecture of PIC. PIC का टॉपिक एक लेक्चर बचा हुआ था तो मैंने आज कवर कर दिया है. ठीक है, I hope you have understood things. Now I'll take some questions. Okay, so any questions, anybody?
सो यू कैन सी ये जो मेंस के क्वेश्चन इनको देख लीजिएगा। आई टेक द क्वेश्चंस।